called psychology. 1, 2, mentioned in the beginning that we will not be completing the syllabus as per its normal sequence. The sequence will be 1, 2, 4, 3, 6, 7, 5, 8. So this is going to the sequence. We have done topic number 1 and now we are starting with topic number 2. Should we? When we are starting topic number 2, basically we are entering a new word and this word is called psychology. Anyone with psychology option? Psycho or किसी का? So we are entering the new word called psychology. Psychology में 3 topics पढ़ने हैं. One is attitude, where we are starting from. Then we will go to topic number 4, that is emotional intelligence, and then we'll go to topic number 3, the first part of topic number 3, that is known as aptitude. So if someone asks you which topics are related to psychology, these 3 topics are to be mentioned: attitude, emotional intelligence, and aptitude, and this will be the sequence. अब देखिए psychology क्या होता है, थोड़ा सा 5 मिनट में समझें इसको. Psychology is the study of consciousness. Actually, consciousness is the software of human body. The body is the hardware. What is software in the computers? Software is the program that runs the machine. We have a body that is the hardware, that is like a hardware made of physical things. But we have a self-running system. So what is that is running our system? जैसे जब मैं सोचता हूँ मुझे हाथ मूव करना है तो क्या होता है मेरे अंदर कि हाथ मूव हो जाता है. ये कमांड कहाँ से आती है, ये कमांड फॉलो कैसे होती है. इस पूरे प्रोसेस में स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट हम सोचते कैसे हैं, हाउ डू वी थिंक, हाउ डू वी फील, हाउ डू वी एनालाइज, हाउ डू वी टेक डिसीजंस. The ability of thinking, the ability of logically thinking, that is known as intelligence, and many other abilities including the ability of creating something new, that is known as creativity. So where these abilities do they exist in something like Atma or Soul, or there is some physical processes which are making this happen. And when we think in the head, let us assume we are thinking in the head. If my brain says that I have to move my hand, so this command has to go to my hand as well. What is the process through which the command decided by my mind goes to my hand, and it happens almost in real time without any lapse of time. So what are those processes? The science that studies all these processes is known as psychology, and psyche is basically the study of consciousness. But when we study consciousness, we have 2 approaches. One approach is scientific approach. When we study consciousness scientifically, it is known as psychology. But when we study consciousness as something metaphysical, it becomes philosophy. I told you in philosophy there are 3 basic branches: epistemology, metaphysics, and ethics. Then I told you in metaphysics there are 3 sub-branches. One says about God, one about soul, one about universe. I did not mention one thing intentionally. In metaphysics, the study of God is known as theology. Theos means God, theology. The study of universe is known as cosmology. And very interestingly, the study of soul is known as psychology. Psychology in that sense is a part of metaphysics, which is a part of philosophy. But when a philosopher thinks about consciousness, he is more concerned about who created soul, where from consciousness comes, what happens in the process of rebirth, etc., etc. But when a psychologist does this thing, the discipline of psychology as a branch of philosophy has been existing since 2,000-3,000 years. Plato in the previous times is saying the soul not only exists, it is also immortal. You must have heard the name of Pythagoras. Pythagoras was almost in the same time when Plato was working in Greece. And Pythagoras is the first Greek philosopher who believes in the transmigration of soul, which is known as rebirth in India. Pythagoras, आपने Pythagoras की थ्योरम पढ़ी हुई है ना? A square plus B square is equal to C square, वो जो उसमें 90 डिग्री वाले एंगल में AB square plus BC square is equal to AC square. Yes. That Pythagoras was not only a mathematician, he was also a philosopher. And generally all the philosophers are either mathematicians or scientists. They belong to any one discipline generally, or linguists nowadays. And that Pythagoras for the first time in Greece. In India we used to say before him. In Greece he was the first philosopher who said the soul not only exists, it also transmigrates. In India we have been saying this before them. They started philosophy in 6th century BC. We had spent at least 1,000 years before that in philosophy. तो बच्चे हमारे सामने फिलोसफी के मामले में दादा होंगे का दो मतलब है, बहुत पहले से कर रहे हैं. एक रिस्क ये भी होता है कि दादा बहुत पुराना हो जाता है, नहीं करता कई बार. तो रिसेंटली उन लोगों ने थोड़ा अच्छा काम किया एज कंपेयर टू अस, बट यस एज फार एज द टाइम स्पेन इज कंसर्न्ड वी हैव बीन फिलोसफी बेटर देन एट लीस्ट 1000 years before they started. तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, बताइए उसमें. Psychology has been a branch of philosophy for thousands of years which talks about consciousness, soul, etc., rebirth, etc. In 19th century, almost in 1850s, for the first time a laboratory was established for psychological experiments. And as soon as we started with experiments in psychology, it became a science. Now it's not philosophy. Philosophy never bases upon experiments. Philosophy at the maximum is based upon observation. It doesn't experiment. I have never seen a philosopher working in the laboratory. कि शंकराचार्य laboratory में काम करने के ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ. He is trying to interpreting things. He is trying to interpret what can be logical or rational explanation of the creation of this world. So logical, rational interpretations are the subject matter of philosophy. But as soon as we start researching in the experimental way, it becomes science. So the scientific study of mind is psychology. Metaphysical study of mind has been philosophy. Understood? So from almost 1850s, we started studying human mind, human consciousness seriously, scientifically. और कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो गई. एक आदमी होता है ट्यूरिन नाम का, TURIN, ट्यूरिन. 1910-20 के आसपास की बात है, in Britain. He gave a challenge to science. एल्विन ट्यूरिन नाम किसने ठीक बोला. उसने कहा कि देखो अभी तो ह्यूमन बीइंग मशीन से बहुत आगे है. Make hypothesis there. Let us see it happens anytime or not. If from one end of communication a human being is communicating, and from the other side a machine is communicating, and the human being is not able to understand this is a machine or a human being, that day we will accept that machines are in a position to overrule us. And this Turing test has been passed by machines recently. कई बार पता भी चलता होगा. आप किसी कंपनी या ऑफिस से उन्होंने कहा कि जब भी प्रॉब्लम हो, you can raise your query on this WhatsApp number. आपने रेज की क्वेरी, वहां से खटाक से जवाब आया, Hi, this is Sumitra. Can you please tell me what's your problem? Can you choose from the given options? आपने ऑप्शन देखे 3 ऑप्शन है, चौथा नन है. आपने 3 में से एक नंबर इंडिकेट कर दिया. Thanks for telling. Now please tell me your query relates to which one of these 15 options. करते करते सारा आंसर निकल गया. और वहां कुछ था ही नहीं. It was a chatbot. नाम उसका सुमित्रा रखा हुआ ताकि आपको बोट ना लगे. और बोल देंगे रोबोट, Hi, I'm robot का हेड रोबोट. क्यों मत करते ऐसे? और जैसे कि सुमित्रा या जो भी नाम रखना हो, तो आपको लगता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन चल रहा है, देन यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग. और पूरी बात हो भी जाती है, सब खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता. कई गांवों के लोग जब पहली बार गूगल मैप्स यूज करते हैं, उनको लगता है कि सच में दीदी बोल रही है अंदर. कितना ध्यान से बोल रही है, 400 मीटर के बाद दाएं मुड़ के कितना ध्यान रखती है मेरा. देखो तुम ध्यान रखती है मेरा. फिर 400 मीटर मेरा भूल रही होती है, अरे क्या बोलना था, चलो कोई आगे जाके राउंड अबाउट घूम के फिर लेफ्ट मुड़ जाना. इतना रियल टाइम बोल रही है, एकदम ह्यूमन वॉइस बोल रही है. तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कोई ह्यूमन बीइंग है जो हमसे इंटरेक्ट कर रहा है, पर वो ह्यूमन वॉइस ही है. बट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैव बीन रिकॉर्डेड. देयर आर 4 or 6 वॉइसेस इन गूगल मैप्स. तो 4 लोगों को पैसा दिया, बहुत स्टूडियो में कई साल लगा. All the sentences that may be required while using Google Maps have been recorded by them many times. And what AI is doing, it is just putting the right sentence at the right time.
400 मीटर बाद दाएं मुड़े, 400 रिकॉर्ड है, मीटर बाद अलग रिकॉर्ड है, दाएं अलग है, मुड़े अलग रिकॉर्ड है। इस राउंड अबाउट पर 6 रास्ते हैं, इसमें दूसरे पर मुड़े, उस बेचारे में इस राउंड अबाउट में 4 रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं, 6 रास्ते हैं, 7 रास्ते, 8 रास्ते, सब रिकॉर्ड रखा है। पहले मुड़े, दूसरे मुड़े, तीसरे मुड़े, सब रिकॉर्ड रखा है। अब इन पीसेस को एआई क्या करती है, सीइंग योर पोजीशन, इट एड्स these pieces in a way that you are not even able to identify where they have added the pieces of voices. It looks like a simple sentence. तो आज तो ट्यूरिंग टेस्ट पास हो गया, मशीन इज वर्किंग एज गुड एज ह्यूमन बीइंग्स वर्क। और नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है समझ लेना, ऐसी की तैसी होने वाली है, जितनी धौंस ह्यूमन बीइंग की प्रैक्टिस सब खत्म होने वाली है। आज से 10 साल पहले when Deep Blue Computer for the first time defeated Garry Kasparov in chess competition, chess तो माइंड गेम है, in chess competition the best human mind of chess Garry Kasparov was defeated by a computer called Deep Blue. तो लोगों ने कहा खत्म, तो no, it can only defeat us in logic, but we have emotions, we can be creative, we can write poetry, we can write शेर शायरी, computer cannot. आजकल कंप्यूटर पोएम लिख रहा है बेचारी, हमारे कई दोस्त असली करने लगे, जब भी किसी के पास चैट जीपीटी जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरे दोस्त इसलिए पोएम लिखो हिंदी में या उर्दू में, क्या बढ़िया पोएम लिखता है कंप्यूटर, उनसे तो अच्छी लिखता है कम से कम। एंड देन दे फॉरवर्ड द पोएम रिटन बाय चैट जीपीटी। अब 10 साल बाद सोच क्या होगा, आप जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना अच्छा बोल सकते हैं, उससे अच्छा मशीनें बोलेंगी। यूपीएससी का अभी तक नहीं सोल्व कर पाया, अभी तक इज द कीवर्ड। 2 साल बाद यूपीएससी का खुद बना देगा वो। जब बिल्ली कबूतर के सामने कबूतर आंख बंद कर लेता है पर सोचता बिल्ली नहीं है। बहुत छोटा बच्चा 1 साल का जब आई स्पाइस खेलता था मेरे साथ, आई स्पाइस समझते हैं ना, जैसे आई स्पाई है पर हिंदी में आई स्पाइस हो गया। बच्चे पता कैसे खेलते हैं, कमरे के बीच में बैठे होंगे, अपनी आंख बंद कर लेते हैं, बोलते ढूंढो मुझे, सामने बैठा हुआ है, फिर माँ बाप एक्टिंग करते हैं, अरे कहाँ चले तुम मिल नहीं रहे, बच्चा खुश हो रहा है, हंस रहा है, देखो घर बना दिया। फिर मम्मी और खुश करती है, अरे गिलास में भी नहीं है, फिर बोलती है अरे पॉकेट में भी नहीं है, अरे स्पून में भी नहीं है बेबी, अरे बेबी तकिए के नीचे भी नहीं है, बेबी कहाँ चला गया, बेबी सामने ठाके वाला ऐसे करके, और फिर बेबी आंख हटा के बोलता है यहाँ हूँ, है ना। अब इस पूरे प्रोसेस में किसने किसको घर बनाया समझ नहीं आता, बच्चा खुश है कि मेरे घर बना दिया माँ को, और माँ इसी में खुश है कि बच्चा खुश है, टाइम आया तो जाता है किसने किसको बनाया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी यूपीएससी सोल्व नहीं कर पाएगी तो हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, बीच में खड़े होकर आंख बंद करके ऐसे 2-3 साल में बहुत बन जाएगा यूपीएससी का चैट जीपीटी से, देख लेना। पर डन ये फिलहाल पढ़ना है, ठीक है। सो साइकोलॉजी स्टार्टेड फ्रॉम 1850s एंड नाउ इट हैज मेनी ब्रांचेस। जैसे इसकी ब्रांचेस में क्या ब्रांचेस हैं, वन इज नोन एज कॉग्निटिव सोशल साइकोलॉजी व्हिच discusses the cognitive aspect. I'll explain what is cognitive in 5 minutes in detail. It also discusses about developmental psychology, which is also known as child psychology. What are the changes in thinking process, learning process, mental processes with the ages? A child of 6 months, a child of 2 years, a child of 3 years, how do they think, how do they decide? This kind of study is known as developmental psychology. One psychology is known as abnormal psychology. This is about the people who are not normal from the standards of the society. They have some different way of perceiving things and reacting, etc. जिनको हम जनरली यूनिटी कह देते हैं, पागल कह देते हैं, they are the people who are studied under abnormal psychology. इसी तरह की ब्रांचेस में से एक ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी. This is the इंटरफेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। एक तो साइकोलॉजी होती है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जैसे हम सब की साइकोलॉजी है, कुछ लोग इंट्रोवर्ट हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट हैं, कुछ एम्बिवर्ट हैं। एम्बिवर्ट इज अ पर्सन हू कैन कंफर्टेबली बी इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो देखते हैं माहौल देख के तय करते हैं कि क्या होना है, वैसे हो जाते हैं। ये तो इंडिविजुअल हो गया। सो इंडिविजुअली यू कैन बी डिफरेंट, ही कैन बी डिफरेंट, शी कैन बी डिफरेंट, बट सिंस वी बिलोंग टू वन सोसाइटी वी हैव सम पार्ट्स इन साइकोलॉजी व्हिच आर सोशली गिवन टू ऑल ऑफ अस, व्हिच आर देयर इन एवरीबॉडीज माइंड, एवरीवनस माइंड। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी, स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी एक्सेप्ट क्रिश्चियंस, ज्यूज एंड मुस्लिम्स और अदर रिलीजंस। अब अगर आपके सामने किसी की मौत हो जाए तो आपके मन में एक फेथ रहता है कि नेक्स्ट बर्थ होगा, एंड इफ यू बिलीव इन द कांसेप्ट ऑफ नेक्स्ट बर्थ, the process of death becomes easier because you have a belief that this is not the end of life, this is just transmigration of soul, and you will come again with a new body in the new form. All the people believing in the concept of rebirth and transmigration of soul have a psychology which is not their personal psychology but the psychology given by the society. This kind of psychology which is coming as a social thing that is known as social psychology, and the psychology part of psychology which is related to the social things, social values, social stereotypes, etc. is also part of social psychology. And the most recent part of psychology is known as parapsychology. This is my favorite area nowadays. I'm studying. This is not a part of the syllabus, but this is a part of my choice, so I keep on studying, researching on this. Parapsychology is trying to find out the answer of the questions which are between philosophy and psychology. For example, we have seen many people who claim to have telepathy, some people who believe to have intuitive powers, and there are many evidences as well, like rebirth. You'll be surprised to know that some philosophers, some researchers, basically not philosophers, like one person, Professor Ian Stevenson, he spent almost 40 years into the studies of rebirth. He belonged to America and Canada. He researched for 40 years, and then he wrote 2 books, including some cases from India and from other countries as well, America as well. The first book is 20 cases suggestive of reincarnation. He studied thousands of cases, rejected almost all the cases on the basis of misinformation or something that this is not adequate, this data is not scientific, etc. He's a researcher, scientific researcher. And then he wrote about 20 cases suggestive of reincarnation, which says, I have tried to refute these 20 cases as well like other cases, but I have not been able to find any argument, any fact to refute these cases. Still, I'm not saying rebirth happens because there may be some other factors, but to the best of my understanding, nothing else can define, interpret, explain these 20 cases, and so I say these are the 20 cases suggestive of reincarnation. अब ये नई ब्रांच शुरू हुई और इन्होंने एक किताब लिखी उसके बाद उसमें नया लिंक निकाल दिया। जैसे हम पैदा होते हैं हमारे बॉडी मार्क्स होते हैं, कुछ किसी का हाथ में कुछ निशान कहीं किसी को कहीं होते हैं, तो उसने एक लिंक निकाला रिसर्च करके कि these body marks also have a connection with the previous birth, and he studied thousands of cases on this as well, and then wrote another book which is a combination of psychology, philosophy, and biology. वो कह रहा है कि even the body marks have a link with the previous births, bodily accidents or something else. This kind of approach टेलीपैथी कैसे होती है, कैसे हम किसी को टाइम लैप्स करते हैं उसके कॉन्शियसनेस में, मेडिटेशन वगैरह के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो सब इसमें आता है. दिस इज नोन एज पैरासाइकोलॉजी, बट वी आर कंसर्न्ड अबाउट वन ब्रांच राइट नाउ एंड इट इज कॉल्ड एज सोशल साइकोलॉजी. क्लियर है? चलिए आइए. When we come to social psychology, we have to understand first what is personality, क्योंकि बाकी सब चीजें personality के हिस्से हैं. Social psychology has a very basic question: what is personality? How do we define anyone's personality? तो personality के बारे में बहुत सिंपल सी बात है. पर्सनैलिटी, अच्छा किसी की पर्सनैलिटी बहुत स्टेबल होती है, रोज चेंज होती है, रोज चेंज होती है. अच्छा डिलीट क्यों होती है, चलो इंसान की बात चल रही है, रोज चेंज होती है पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी का मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये इंडिविजुअल क्या करेगा. If you are able to predict almost accurately what this person will do in such a situation, it means you know about his or her personality well. So what is personality? Personality is stable set of attributes. Stable set of attributes in a person
that distinguishes him or her from others. Stable set of attributes that distinguishes him or her from others. तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें कॉमन है जो सब में होती है. कोई आपसे पूछे कि उसके बारे में बताओ कैसा इंसान है आपके, वो he has two eyes and he has one nose and he has two ears. तो बताओ सब कहीं रहने दे भाई, तू तेरे बस की बात नहीं. तो स्टेबल तो बताया उसने सारा, जो बताया स्टेबल है, बचपन से दो आंखें उसकी. स्टेबल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट डिस्टिंग्विशेस हिम और हर फ्रॉम अदर्स. जो चीजें आपको अलग करती हैं वो आपकी पर्सनैलिटी है. और अलग हो तो परमानेंट हो, स्टेबल हो. यानी कि कुछ खास किस्म का कपड़ा पहना, ये पर्सनैलिटी है. जब बुरे कपड़े पहनता है, ये स्टेबल स्टेबल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर्स इज योर पर्सनैलिटी. और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करें, तो फिर लोग कहते हैं कि पर्सनैलिटी के तीन हिस्से हो सकते हैं जिनमें से एक का सबसेट बनेगा एटीट्यूड. किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करना हो, एक होता है फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या फिजिकल एट्रीब्यूट्स बेसिकली. सेकंड इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड इज बिहेवियरल. So a personality can be defined with the help of three components or three constituents: physiological attributes, psychological and behavioral. Physiological वही जैसे आपकी उम्र में ज्यादा किया जाता है डिफाइन, कैसा दिखता है, कैसी दिखती है. तो इसमें क्या आता है, कॉम्प्लेक्शन. सब छोड़ो, बताओ गोरा है कि नहीं. गोरा तो है पर गोरा है कोई बात नहीं, गोरा है ना, बात खत्म. हैज टू बी फेयर इन कॉम्प्लेक्शन. इंडिया में रह के अमेरिकन होना चाहता हूँ, आई वांट फेयर पर्सन इन माय लाइफ. तो कॉम्प्लेक्शन कैसा है, गोरा है, लाल है, पीला है, काला है, कैसा है वो. फिर उसकी हाइट कैसा है, बस समझ लो कि पेड़ है. अरे वाह क्या बात है, मैं इसी पेड़ का पक्षी बनूंगा. तो पेड़ है, आपको चाहिए पेड़ ना, पेड़ अच्छा लगेगा. तो हाइट हो गया, वेट हो गया. अच्छा ये और बताओ वेट कितना, बस समझ लो कि हाथी है. तो फिर ठीक नहीं है, फिर तो ठीक नहीं. तो लंबाई और वजन, रंग और क्या होता है, ये सब चीजें. और कुछ खास बताओ, कुछ नहीं, 200 से बदलू मारता है, ब्रश नहीं करता है. सो दिस इज आल्सो फिजियोलॉजिकल फैक्टर, है ना. तो ये सब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. इवन इफ समवन हैज सम डिफॉर्मिटी इन हिज फिजिक, because that deformity is stable and that distinguishes him or her from others, so it also becomes a part of his or her personality. So even the deformities are accepted to be the part of personality. Psychological पढ़ेंगे, तीसरा है behavioral. किसी का बिहेवियर कैसा है. तो एक ग्रुप होता है कि इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है. तो इससे हम जज करते हैं कि what kind of personality is this, introvert or extrovert. एक्टिव है या पैसिव है, डोमिनेंट है या सबमिसिव है. ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनसे आप समझ सकते हैं किसी को. इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट को बताइए ना. देखो दुनिया का सबसे इंट्रोवर्ट इंसान भी किसी के सामने घोर एक्सट्रोवर्ट होता है. और बड़े बड़े एक्सट्रोवर्ट कहीं जाके चुप मार जाते हैं अचानक. बस इतना ध्यान रखना. So few people are more extrovert, few people are more introvert, इतना ही मामला होता है. So extrovert is the person who mixes with the new people very quickly and comfortably. नए लोगों के साथ. पुराने के समय extrovert होते हैं, कौन सी बात. नए लोगों से मिले. कई लोग ऐसे होते हैं, ट्रेन में मिलते हैं 4 घंटे में ऐसे रिश्तेदारी निकाल लेते हैं उसी में. बैठ के गप मारना शुरू, हाथ देखते हैं, जो शुरू करते हैं. उसके बाद 1 घंटे में खाना खिलाते हैं अपना. तो पूरा खाना खा के बढ़िया से उसको बोलते हैं कि आप काम कीजिए, अपने बैठिए, सो जाते हैं. उसी किसी के सो जाते हैं 1 घंटे के लिए. फिर वो आदमी उठाते सारा पैसे वाला, फिर उठते हैं, हाँ ठीक है थैंक यू, उतर गए, बिना टिकट आए थे, सारी मौज लेके उतरे. कई ऐसे भी तो सुपर एक्सट्रोवर्ट कई लोग, और इंट्रोवर्ट बेचारे जिंदगी में बोल नहीं पाते. कई बार सोचा बोल दूं, और फिर बाद में 25 साल बाद समझे समझे उनके सामने बैठे होंगे. इतने इंट्रोवर्ट होते बेचारे बोल नहीं पाए कभी, है ना. तो चलिए ये तो जानते हैं. एम्बिवर्ट इज अ पर्सन हु इज कंफर्टेबली, हु कैन स्विच इनटू बीइंग इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट कंफर्टेबली विद दिस एम्बिवर्ट, एंड दीस आर द बेस्ट पीपल. एम्बिवर्ट एक्सट्रोवर्ट को जिंदगी में थोड़ा फायदा ज्यादा मिल जाता है. कहीं शादी वादी हो रही है, गए वहां, नाच किया, दोस्तों से खाना खाया, किसी ने पूछ लिया कहां से, अरे आप कहां से हो, खाना खाया और निकल गया. कॉन्फिडेंट एंड एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट अपनी शादी में गए घूमते देखो, डर लगता है क्या करते. ऐसे एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस में रजमन ज्यादा है हर समय. एक दूसरे को क्लास में कुछ बोलना है, जरूर कुछ ऐसा करने की कोशिश करता. ये होता है एक्टिव. और अच्छा यहाँ का एक्टिव और रजमन ज्यादा होता है. जब पैसे में तमस वाले आराम से बैठे हैं, नीचे गिर लगे, जब मन यूरोप के नीचे और कुर्सी के नीचे चले गए, नींद थोड़ी फिर ऊपर है, 10 मिनट देखा फिर चले गए. पैसे में हर तरह का ग्रुप में जैसे आप ग्रुप में पहचान पाओ कैसा. तीसरा डोमिनेंट और सबमिसिव. डोमिनेंट इज अ पर्सन हु डोमिनेट्स द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. ग्रुप 5 का होता है, नेता एक ही होता है. नेता बोलता है आज तुम्हारा भाई पार्टी देगा, 8 बजे तैयार रहना. ये पूछ नहीं रहा कि चलोगे नहीं चलोगे, डू यू वांट टू कम विद मी, स्पेस एक्सेट्रा, कुछ नहीं. आज तुम्हारा भाई पार्टी देगा, 8 बजे तैयार रहना बस. और इनमें से एक की मम्मी आने वाली है 7:30 बजे, उसकी मर्जी नानी बेचारे की, क्योंकि डोमिनेंट आदमी ने कहा है भैया मम्मी आने वाली थी, तो नहीं कोई बात नहीं, बताओ मम्मी कराएगी, आई गो विद यू. ये कौन सा, ये वाला है. ठीक से कह नहीं पाते, अपना हक नहीं मान पाते बेचारे. आपने कई लोगों को लग रहा है कि पहचान लिया मैंने आपको. Most of us are submissive in some aspects of life. Most of us are dominant in some other aspects of life. We dominate few people dominate us. So when someone dominates us, we are submissive in that relationship. When we dominate someone else, we become submissive in that relationship. ये वैसे ही है कि आपको किसी ने ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, आपको याद है, और जिसको आपने किया वो आपको याद नहीं है, वो तो उसको याद है. So when we objectify someone, please be careful, someone will also objectify us. This is a two-way process, it's not a one-way process. But being a dominant person or aggressive person or dominating person is not good. Being a submissive person is far, far bad. Never submit to someone's bad wishes or wrong intentions, never. If you are a submissive person, you will always be objectified and you will not be able to be a subject, be a human being. और इसलिए बहुत पॉपुलर बुक है, डोंट से यस इफ यू वांट टू से नो. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे शुड से नो, दे स्पीक यस. एंड दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन सोशल साइकोलॉजी. आप सबको लगा कि आपके बारे में बात चल रही है, कुछ लोगों को आपके बारे में ध्यान आ रहा है कि वो मुझे बड़ा बढ़िया सुन लेता है, वो भी उतना ही सच है. एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज एन आइडियल पर्सनैलिटी, इन दोनों के बीच में होता है असर्टिव. दिस इज द राइट काइंड ऑफ पर्सन व्हिच यू शुड बी, व्हिच एनीवन शुड बी, नॉट यू, एवरीवन शुड बी. व्हाट इज असर्टिव पर्सनैलिटी? ये वो लोग हैं जो गलत डिमांड किसी से कभी नहीं करते. फ्रेंड्स आई वांट टू सी अ मूवी टुनाइट 8 o'clock, एनीवन इफ विशेस टू कम, दिस इज फ्रॉम माय साइड, हु वांट्स टू कम विद मी. पूछ ले, सबकी चॉइस है, सबका स्पेस है. दोनों काम चलेंगे, यस व्हाई नॉट, लेट्स गो. एक जगह मम्मी आ रही है, क्या बात है, उनको प्रणाम करना है और कभी देखेंगे फिर क्या करते हैं. Undue expectation किसी से नहीं रखनी. Don't objectify anyone. Don't keep any unjustified expectations from anyone. This is first characteristic of assertive people. Second,
नो वन कैन ऑब्जेक्टिफाई देम। आज तुम्हारा भाई फिल्म दिखाएगा तैयार रहना, एक ने कहा 3 को 3 आने वाली पर एक सर्टिफिकेट बाद में है, कह रहा आज नहीं जा पाऊंगा भाई, तेरी इतनी हिम्मत, हाँ इसमें हिम्मत कैसे है, नहीं जा पाऊंगा, तेरी हिम्मत, भाई ने बोल दिया भाई के बच्चे तो बोल दिया बात है, तू जा लेंगे फिल्म तो नहीं देखनी मुझे, ये होना चाहिए, किसी को एडवांस क्यों नहीं चाहिए यार, भाई फिल्म का मन सब बैठ जाएंगे डिस्कस नहीं जाएगा, ठीक है मतलब I will never expect something beyond my limitations from anyone, and I will not allow anyone to take me for granted. This balance is known as being assertive. Don't objectify anyone, never be objectified by anyone. This balance is being assertive. आप सबको यही मेरे बारे में चल रही है ना, आप सब तो हैं, कहने की बात नहीं है, ये तो बाकी लोगों को बताने के लिए, आप तो हैं, आपका ये आइडेंटिफिकेशन नहीं वाला, परफेक्ट। चल तीसरा है साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स, यहाँ से आपका एटीट्यूड आ जाएगा जल्दी से। साइकोलॉजिकल एटीट्यूड्स क्या होते हैं ये बताइए। क्या बात है, मनवा लेता है कि नहीं है, चलो जो भी है बटा हाँ दोनों बात ठीक है। देखो बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया है आपने, क्यों मेरा सबसे खतरनाक सवाल कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन करता है कि ना बोलें और सामने वाला इमोशनल सेंटेंसेस यूज करके मनवा लेता है, तो वो असर्टिवनेस है या नहीं है। वैसे बहुत सीरियस सुन रहे हैं, 10 लोग बहुत सीरियस है, ये क्वेश्चन मेरे काम का आया आप पटवानी क्या पढ़ा रहे थे, अब जाके पढ़ रहे हैं सर और नहीं लाया है ना। तो देखो इन एन इमोशनल रिलेशनशिप दिस इज ए फंडामेंटल थिंग, कभी कभी आपको उसके हिसाब से कभी उसको वापस चलना पड़ेगा। इस सिंपल सी बात है, बीएफजीएफ है हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का फिल्म देखने वाइफ एकदम मन नहीं कर रहा, हस्बैंड का ठीक है भाई दो ही ऑप्शन है, ठीक है मैं चला जाता हूं या ये कि मैं नहीं जाता हूं, अगर मैं चला जाता हूं क्या तो ये होगी वो वहां, तो समवन हैज टू कंप्रोमाइज। तो वाइफ ने दिन दे दिया तुम्हारा मन है तो चलते हैं, उसने बोला मन तो ये ठीक है क्या हो जाता है, अगले दिन वाइफ ने कहा खाना है बाहर चले, पति का मन नहीं है और उसने कहा चलते हैं। So in any relationship, it happens that both of the people are not having the same mood every moment. They have differences of opinions and intentions. If the compromises are almost equal, it is perfectly fine. If the compromises are being made by one person almost always, and the other person is not making compromises, this is a dominated relationship, subject-object relationship. So see the quantity, make notes. आज उसने इमोशनल सेंटेंस बोल के ये करवाया, फिर अगले नोट कल मैंने इमोशनल बोल के ये करवाया, one equal. So if it is equal or almost equal, it is perfectly fine. Human relations are different from robotic relations, so it will always happen, but it has to be on equal footing. It has not to be one-sided. ज्ञान मिल गया है ना, चलो अगर वो फिर अगर वो कसम दे फिर तो क्या हुआ, बार बार कसम दे काम करवाई जा रही है तो, और ये ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया। तो मैंने क्या बताया था आपको, कसम दे कसम एक ही बार में कर दो कि तूने आज के बाद कोई कसम दी तो तुझे मेरी कसम है, ठीक है वो ऐसे कर लेती है टाइम पे। तो आप ना फेरिकोल से चिपका लो ऐसे, और जब कुछ भी कहते पहले ऐसे बात ही खत्म। और नहीं कोई तरीका और एक बार उसको बोलना तूने पिछले हफ्ते कसम दी थी मैंने वो काम नहीं किया था पर तू नहीं मरी, तब से मुझे कसम से भरोसा उठ गया। अब हम सारा यही करूँगा ना, पढ़ाई मत करना, वैसे पढ़ते चलिए। देखो साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स ऑफ पर्सनैलिटी में when we define the psychological aspects or attributes of a personality, we have two types of attributes. One is known as capabilities or abilities. Capabilities or abilities. And second is other aspects. कोई specific नाम नहीं दे सकते. When we talk about the capabilities to judge a personality, it can be intelligence. Intelligence is a capability or an ability. Fine. Intelligence also includes emotional intelligence. That is also a capability. Then there is a thing called creativity. Another thing called aptitude. I hope you are able to understand that two of the three topics which we will be studying in next 4 5 days do come in the ability side of the personality. We have to study emotional intelligence and aptitude. So these are two capabilities. But the other aspect is not about the capabilities, it is about other features. For example, our values. When you judge a person, his or her values are important or not? Very important. So values is a part which is not capability. Value is not a capability. But value is something that makes the attitude mind of the person. इसी तरह से एक चीज है attitude. Attitude is not a capability. Attitude is not an ability. Attitude is about the orientations of a person, and orientations are not at all linked with the capabilities. Other than this, we have opinions, we have beliefs, etc. So if someone asks you what is a personality and how is attitude placed in personality, personality is the stable set of characteristics which distinguish one person from the other persons. It has 3 types of components: physiological, psychological, behavioral. In physical, length, weight, etc., complexion, etc. In behavioral, active, passive, introvert, extrovert, dominant, submissive, assertive. And when it comes to psychological characteristics, then we have 2 aspects: one is capabilities, intelligence, creativity, emotional intelligence, aptitude, etc. And the other aspects are generally linked with this person's understanding of the society. उनको हम belief, value, opinion, even prejudices, stereotypes, and attitude. So we are supposed to study 3 topics out of this: social psychology, attitude, aptitude, intelligence. Placement समझ में आ गई कौन सा कहाँ पर है? So now from this point we'll start studying attitude. Yes. अरे मेरे भाई ये कहने की आपने कहा वैल्यूज पे लोग जज करते हैं, लेकिन देखिए तो जनरल फिजियोलॉजिकल बेसिस पे जज करते हैं। इन सबके बीच में और नहीं लगा हुआ है, ओ आर और एंड लगा हुआ है। पीपल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड योर बिहेवियर एक्सेट्रा। अब जज करने वाले के दिमाग में देखिए अभी आप 20-25 लोगों में जनरली आप लोगों के लिए आप कितना भी तमाशा कर लें, बट व्हेन यू चूज समवन टू हैव रिलेशनशिप विद फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरऑल अदर फीचर्स जनरली, क्योंकि आप जो समझ में उस समझ में ये सब चीजें समझ में आती हैं, सीधी बात है। लेट अस अज्यूम समवन ऑफ यू फॉर सम पर्सनल रीजंस डू नॉट मैरी टिल द एज ऑफ 35 38, लेट अस अज्यूम मे बी 1%। अब 38 की उम्र में जब वो इश्क करेगा ना तो उसके पैरामीटर्स एकदम चेंज हो जाएंगे। वो मेडिकल रिपोर्ट देगा पहले कि बीपी तो नहीं है तुम्हें, शुगर तो नहीं है, क्योंकि वो उम्र है, तुम्हें घुटने में दर्द तो नहीं होता है, सब चेंज हो जाता है। ये सब उम्र की बात है। अभी आपके समय में चेहरा देख के ज्यादा इमोशन आते हैं, ये इमोशन 4 दिन आते हैं भाई। जब कोई आपकी जिंदगी में 4 दिन चेहरा देख खुश होकर बाकी दुनिया देख खुश होती रहेगी, आपको क्या उसके बाद ऐसा होगा? फिर कौन पूछता है उसके बाद? जो मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला सोना है, सबके साथ ही होता है। तो ये आपको लगता है कि फिजियोलॉजिकल से होता है, लेकिन एक लेवल के बाद फिजियोलॉजिकल थिंग्स बिकम मीनिंगलेस। फिल्मों में सूरत और सीरत में किस पे जाओगे? लोग बोलते हैं सीरत सूरत में होती सीरत है। यहाँ किसी ने पूछा हाँ हम इनको जनरली एक मानने के साइकोलॉजी में बहुत गहराई नहीं जा रहे हैं, ऐसे फिलोसफी में कुछ रैंडम स्टेटमेंट दूंगा कि आपको जरूरत नहीं है जाने की, अभी हम एक ही मानते हैं कैपेसिटी कैपेबिलिटी एबिलिटी मान चलते हैं। बिहेवियर हाँ कॉन्टिन्यू में सब कॉन्टिन्यू में होता है,
इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, नो वन इज इंट्रोवर्ट, नो वन इज एक्सट्रोवर्ट। मैंने कहा कि इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट आदमी किसी के सामने एक्सट्रोवर्ट होता है, मुश्किल नहीं, सवाल कर देता। 100% इंट्रोवर्टेडनेस इज नॉट पॉसिबल, 100% एक्सट्रोवर्टेडनेस इज नॉट पॉसिबल। जैसे इस क्लास में 2-3 बच्चे बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, जो कि हर क्लास में रहता है प्रोपोर्शन। मैं दावे से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जाके इनकी हवा खिंच जाती होगी, मुंह से एक शब्द निकलता होगा कहीं ना कहीं जाके, या तो बोल रहे हैं क्लास में स्मार्ट है, बोलते हैं कॉन्फिडेंट है, कहीं ना कहीं जाके नहीं बोल पाते होंगे। क्यों शोभा की बात है, बोल रहे हैं सच बात है। जो आदमी हर चौथी बात में कसम देती है मैं चाहता हूं, भाई बोल पाता होगा, तो इसका भाई कोई कितना ही एक्सट्रोवर्ट हो, कहीं ना कहीं जाके हिसाब बराबर हो जाता है। ऐसा ये आइडियल कांसेप्ट है कि कोई पूरा एक्सट्रोवर्ट होगा, नो वन कैन बी एब्सोल्युटली एक्सट्रोवर्ट, इम्पॉसिबल। प्रोफेशन में लोग समाज से मिलते हैं, डिपेंड करता है प्रोफेशन कौन सा है। फॉर मॉडलिंग, तो मॉडलिंग में तो ऐसे को अच्छा परसुएशन का समझ नहीं है, तो समझ में आएगा परसुएशन। इन यूपीएससी यस आई सेड इफ यू लुक गुड मोस्ट लाइकली यू विल गेट फ्यू मोर मार्क्स इन द इंटरव्यू। यस, इट्स नॉट लिंक्ड टू यूपीएससी रिक्वायरमेंट्स। इसकी वजह ये कि इंटरव्यू लेने वाले भी इंसान होते हैं, इसकी वजह वो है कि कोई सिलेबस नहीं लिखा है, इंसान तो बैठे हैं, उनको भी अच्छा लगता है, कोई ठीक खुली में आता है, अच्छा लगता है उनको, इट्स एज नेचुरल एज दैट। आपको नहीं लगता? अच्छा एज्यूम करो कि आप इंटरव्यू ले रहे हो, दो लोग हैं इक्वली स्मार्ट इक्वली एबल, एक लड़का एक लड़की है, बताओ सिलेक्शन किसका होगा? विद्या क्या बोले कह रहे सेम होगा लड़की का होगा, और ये मत कहना कि सेक्शन से भी कम बोल रहे हैं, अपनी वीकनेस बताओ। So this is as normal as in your case. Why do you expect these numbers to be extra humans? They're also human beings. And this happens at a subconscious level. It's not happening at conscious level. कोई बोलता नहीं कि सुंदर था इस नंबर देते हैं, ऐसा बोलता कोई नहीं। Subconsciously they are more impacted by the personality. इस तरह से होता है। चलो उन चिंताओं को छोड़ो, इसके एटीट्यूड पर। What is attitude? ये बहुत खतरनाक सवाल है, इसका आंसर कब मिलेगा आपको? इसमें सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, can we say our psychological attributes determine our behavior properties or attitudes? इस सवाल को साइकोलॉजी एटीट्यूड के टॉपिक में सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? Is it necessary that our behavior will be always linked with our attitudes? So attitude behavior link is the question which we have to understand tomorrow probably. And in 1934, a milestone study, a breakthrough study happened in America, which changed all the perceptions. So right now the reality in one sentence is, normally we intend to behave according to our attitudes and values, but most of the times we do not. But the intention is there. We want to behave accordingly, but most of the times we are not able to do that. And this will be a judgment in tomorrow's class. Right? So what is attitude? I had given brief introduction about attitude in the first class, so we start from there. So if general meaning we have to understand, पहले आपको मीनिंग समझाता हूं ठीक से, फिर बताऊंगा कि किसने कैसे डिफाइन किया। डेफिनेशन रटना सबसे गंदा काम होता है। We have to create definitions. Why should we learn definitions? कंसेप्ट समझो, उसको सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन। डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है? Even the definition has a definition. Definition is the clarification of concept in least possible words. कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है कम से कम शब्दों में, एक्स्ट्रा वर्डिंग नहीं होना चाहिए उसमें। That is definition. So if you know the concept clearly, you can easily frame the definition. Not a problem. So let's understand the concept. Attitude is an orientation. So orientation is a simple word which all of us understand. Orientation is we have some inclination towards something. When the orientation is positive, we call it inclination. But orientation is a neutral word. It can be positive, it can be negative, it can be both. Orientation towards, अब देखिए एक वर्ड साइकोलॉजी में चलता है, जिसे बोलते हैं towards a psychological object. When you study books of psychology, they use this term quite often, psychological object. तो पहले इसी को समझिए होता क्या है। जैसे ये पेन है, this pen is an object, but this is a physical object. देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ध्यान रखो। Subject is the one who is thinking. Object is the one about whom subject is thinking or feeling whatever. Fine. So this pen is an object because right now you and I are thinking about this. ये तो physical object है। You for me are also object. I for you am an object. क्योंकि आप मेरी कॉन्शियसनेस को नहीं जान सकते, मैं आपकी कॉन्शियसनेस को नहीं जान सकता, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हैविंग अ बॉडी वी कैन एटलीस्ट परसीव ईच अदर एंड वी कैन सी ईच अदर एज ऑब्जेक्ट, एज ए मूविंग ऑब्जेक्ट, एज ए लाइवली ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी आ रहे हैं, चेयर पहले आ चुकी है, फिजिकल ऑब्जेक्ट, टेबल भी आ गया, पंखा भी आ गया, सब कुछ आ गया। नाउ इफ आई से समथिंग अबाउट समथिंग दैट इज इंटेंजिबल और एब्स्ट्रैक्ट, कैन यू हैव एन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इंटेंजिबल थिंग्स? फॉर एग्जांपल, अगर आप हल्का सवाल पूछे, भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव, प्रेम के बारे में क्या सोचते हैं, चार लोगों को माइक दीजिए, बताओ क्या सोचते हैं। एक फुकरा है जो कब से ढूंढ रहा है किसी को, उसे कोई मिल नहीं रहा, कहेगा प्रेम जन्नत है, जन्नत प्रेम है, प्रेम के सिवा दुनिया में कुछ नहीं है, प्रेम सब कुछ है, क्योंकि फुकरा है बेचारा, परेशान है, बाइक पे पीछे सीट खाली है उसके। दूसरा जिसको अभी भी प्रेम हुआ है 24 घंटे पहले, इस साथ में आसमान पे चल रहा है, कहेगा प्रेम के लिए मैं अपनी बलि दे सकता हूं, आई कैन सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर हर और फॉर हिम, व्हाटएवर इट इज। लव इज स्पिरिचुअल ब्लिस, लव इज ट्रांसेंडेंटल, लव इज दैट वर्ल्डली, लव इज बियॉन्ड सेवन क्या बोलते हैं क्लाउड्स एंड हेवंस, पता नहीं क्या। अभी 24 घंटे हुए, 24 दिन बाद पूछना इससे। तीसरा तीसरे में 6 महीने हुए प्रेम करते हुए, और इसलिए प्रेम का भी शेड्यूल फिक्स है 6 से 7 इवनिंग। इन इज डेली शेड्यूल व्हेनेवर फिक्स फॉर लव फॉर द फ्रेंड, उसमें दोनों एक दूसरे बैठते हैं 5 मिनट हालचाल पूछते हैं, फिर डिस्कस करते हैं बाकी टाइम में, क्योंकि बाकी सब डिस्कस हो चुका है पहले। देयर इज नथिंग न्यू एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। सो दे डिस्कस करंट अफेयर्स इन द लव टाइम। And so we love Kevin. It's a routine thing. It's a routine matter, very monotonous kind of obligation, kind of responsibility which someone gives us customs and we have to follow it. चौथा जो अभी अभी दिल तोड़ा के आया अपना, दिल टूटा है आज ही उसका, आपने लाइक लगा लिया, बट डू यू थिंक अबाउट लव, धोखा है, फरेब है, इनके चक्कर में मत पड़ना जी, भरोसे के लायक नहीं होते। अब देखिए आप एक ही क्वेश्चन को चार लोग से चारों का एकदम अलग परसेप्शन, बट फ्रॉम दिस एग्जांपल वी केम टू वन कंक्लूजन दैट we can have orientations even about the things which are intangible. Love is an abstract concept. Love is just a feeling. Love is intangible. It's not tangible. So when I say we can have orientations towards the physical things, towards different human beings, even towards the concepts, even towards the intangible things, in psychology, all these collectively are known as psychological objects. What does it mean? Any object doesn't mean physical object. Object is something we can think about. Anything that can be thought about is a psychological object. It even includes countries, it even includes space, it even includes ideologies. आपसे पूछे लेफ्ट और राइट में क्या अच्छा है, राइट तो पास है, लेफ्ट और पास है, सबसे अच्छा वो जो मेरे पास है। हाँ, शुभनिज्म इज द आइडिया, फाइनल आइडियोलॉजी इज शुभनिज्म। आप कह सकते हैं आपकी चॉइस, यू हैव एन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स, उसके लिए क्या मैं तुम लिस्ट में भाई एक भूल कर अच्छा एक बार पीएम बनना फिर दूंगा, तो यू कैन हैव ओरिएंटेशन, यू कैन से द राइट मुझे बात है ना, राइट है तो लेफ्ट है, छूट गया पीछे, फिर आप कह सकते नो द लेफ्ट इज राइट एंड राइट इज लेफ्ट, आप ये भी कह सकते हैं दैट इज अबाउट योर ओरिएंटेशन। So you can have orientations about ideologies, thinkers, people, different physical things, and intangible things, and all these things which can be thought about are known as psychological object in psychology. Understood? So orientation towards a psychological object, and this orientation can be of 3 types. It can be positive, it can be negative, and it can be
ambivalent. Ambivalent means positive plus negative. Having positive and negative feelings for the same psychological object simultaneously is ambivalent attitude. यहाँ तक स्पष्ट एकदम। आपको अपने पेरेंट्स को लेकर सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, कभी नेगेटिव आती है, आती है नेगेटिव, तो वो भी ambivalent है। But if the proportion of positive or negative is almost 90-95%, we treat it to be positive or negative. But when the proportion of positive and negative becomes competing to each other, almost equal, then this attitude becomes an ambivalent attitude. यहाँ तक क्लियर है? अब असली बात आ जाओ इसके बाद वाली। It has three components. An attitude will always have three components. और ये जो तीन components हैं, ये word इनमें से एक word पहली बार आया तो पहली बार ध्यान समझेंगे, फिर ये बार बताएगा आपके सामने। One component is cognitive. The other component is affective or emotive. Affective or emotive. In the world of psychology, when we use the word affect, A-double-F-E-C-T, it means emotion. So affect and emotion are the same things. And in general language, feeling, emotion, and affect, three are the same things. And third is behavior. This is the expression of an attitude. अभी समझ में आएगा क्यों? ये भी orientation का expression है. And almost all the communication you see surrounding you, that is the expression of attitudes. अभी देखिएगा, थोड़ी देर में पता चलेगा, यहाँ भी attitude ऐसे लगेगा, हर जगह. So behavior. But behavior में एक word है disposition. उसको और note कर लीजिए. What is the exact meaning of disposition? Have you heard this word? No. Who will tell me what is the exact meaning of disposition? कोई बात नहीं, तो एक काम कीजिए, oblique लीजिए tendency. या लिखिए willingness. उससे भी concept उतना ही समझ में आएगा. Disposition is the word which is generally used by psychologists, but we can replace this word by tendency or willingness. अब देखिए पूरी बात क्या है. 1940s के आसपास पहली बार attitude को स्टडी किया गया, डिफाइन किया गया. थर्स्टन नाम का एक आदमी था 1946 में, उसने पहली बार उसकी डेफिनेशन दी. And he was basically 1920s के आसपास social psychology became a very important branch of psychology. So since 1920 or maybe 1905, because intelligence studies started around 1905. So from the beginning of 20th century, intelligence, attitude, these topics were being studied, and people had a belief that attitude is the most important topic of social psychology. This is the part of psychology which affects our social structure at the maximum level. So they were quite keen to understand what attitude is, how it is formed, and how can we change attitudes of the people so that they can create a better society out of them. That is the basic purpose. तो जब शुरू में डिफाइन किया तो उन लोगों ने सिंगल फैक्टर डेफिनेशन दी, यूनिफैक्टर डेफिनेशन, और थर्स्टन ने कहा कि जो इफेक्ट होता है उसकी इंटेंसिटी अगर है उसी को एटीट्यूड कहते हैं. सो इफ यू हैव एन इमोशन टुवर्ड्स ए साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटेंसिटी उसमें होनी चाहिए, दैट इज एटीट्यूड. तो लोगों ने बात क्या बात करी थोड़ी सी 20-25 साल कुछ लोगों ने नहीं यार इसमें एक चीज नहीं, दो चीजें होती हैं इसमें, ए और सी दोनों होता है, ये सी और ये ए. कॉग्निटिव और इफेक्टिव दो एस्पेक्ट्स होते हैं. सो इफेक्टिव तो समझिए इमोशन होना चाहिए, बिहेवियर जानते क्या होता है, व्हाट इज कॉग्निटिव, व्हाट इज कॉग्निशन. कॉग्निटिव इज मेड बाय कॉग्निशन, और कॉग्निशन से पहले री लगा देंगे तो क्या बन जाता है, रिकॉग्निशन. आपको हां ये तो पता है रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन से हटा दीजिए कॉग्निशन. देन यू रिकॉग्नाइज समवन, इट मींस यू न्यू हिम and again today he has come in front of you and you have recognized, हाँ तो वो ना, हाँ मान लेते हैं ना, recognized. It means cognition happened in the first time and recognition happened in the second time. So if the re element is eliminated, what is cognition then that happened in the first time? That is the process of knowledge. When you know something for the first time, that is known as cognition. Whatever the form of knowledge, if you know something, the process of knowing is cognition. For example, you saw the board for the first time and you just thought this is white. This is cognition. Cognition that the board is white. Cognition that the pen being used on the board is black. This is all cognition. And we are always in the process of cognition because a lot of inputs are always coming to us, and receiving those inputs, processing them, and taking them as some knowledge is the process of cognition happening all the time. Understood? So some people said when we have an attitude, we have first some cognition. Cognition का मतलब ये नहीं कि सही नॉलेज होनी चाहिए. एक एग्जांपल समझते हैं. जैसे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे खूब होते हैं. अब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कहीं पर दिखता है. आपको क्या लगता है कि हिंदुओं के दिमाग में मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों के दिमाग में हिंदुओं को लेकर गलतफहमियां हैं? नहीं, ठीक है, गलतफहमियां हैं. अब मान लीजिए कि हिंदू घर में मुस्लिम घर में बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं. This child does not have the ability to test all those statements. Verify करेगा स्टेटमेंट तो पॉसिबल नहीं. ये तो बहुत छोटा सा है, तो दिमाग में चलता नहीं. So before he will be able to understand how to verify the statement, he will be flooded with a lot of statements which do not have any evidence or meaning. And these statements will make the superego and the attitudes and the value system of this child. So before being able to understand that we should check anything before accepting, he must have accepted a lot of things unchecked. And they have become the part of the subconscious mind, which is not even in his control now. This is how we become criminal. Before we understand what criminalism is, we are already criminal. And to such a level that from the conscious efforts, you cannot change your subconscious mind. From the conscious efforts, I can change my conscious mind. But something that has gone into the subconscious, or sometimes to the unconscious mind, which is not even traceable for me consciously. Subconscious is at least traceable. You can at least find with research what is there in the subconscious mind. In the unconscious mind, you cannot even find out what lies there. And that is impacting your personality badly. So by the time we realize that we should check the facts, we are already flooded with, surrounded with a lot of misconceptions which have become the part of our subconscious system, and that is governing our body, that is governing our thought process, decision making process. अब ध्यान रखना है, किसी हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई को अगर आपने गलत बातें सिखा दी हैं, उसे चेक करने की जरूरत नहीं है. फॉर हिम दैट इज द कॉग्निशन. आई नो दीस पीपल आर वेरी बैड. उसे डाउट नहीं, उसे वेरीफाई करना नहीं. फॉर हिज सेटिस्फैक्शन ही हैज द नॉलेज, एडिक्वेट नॉलेज, एंड दैट एडिक्वेट नॉलेज फॉर्म्स हिज कॉग्निशन, एंड दिस कॉग्निशन इज एडिक्वेट. और ऐसा कॉग्निशन है तभी तो धंधा कर पाएगा. अगर सही कॉग्निशन हो गया तो धंधा कैसे करेगा? So if you want to brainwash someone, you have to cognitively give him some inputs which are doctored in a way that they create the same emotions that you want him to perceive. This is how attitudes are formed in the society. तो बस ध्यान रखना, कॉग्निशन का मतलब ये नहीं कि सही नॉलेज होनी चाहिए. You need to have knowledge. जैसे कोई बच्चा देखो, ये मुसलमान लोग बकरा काटते हैं, बड़े गंदे होते हैं, ध्यान रखना. बच्चे को बैठ गया तो बकरा काटने का बकरा ना मिले इंसान काट देते हैं, बच गया. अब इस विचार को क्या पता सही गलत बात है. छोटे बच्चों को हमारे घर में क्या होता है, बच्चा बहुत ऊत होता है. शुभम समझ रहे हो? जब बच्चे बहुत ऊत समझते हैं, उत्पाती मतलब बहुत शरारती बच्चे होते हैं, छठे हुए होते हैं बच्चे. अब मम्मी के लिए बेटा बच्चे सोने तैयार नहीं. मम्मी से क्या बोलते हैं, पुलिस अंकल आ गए. तो 6-7 महीने पुलिस अंकल से काम चल जाता है. पुलिस अंकल बोलते सोता है, पुलिस अंकल आ गए. फिर गली मोहल्ले में पुलिस वाला बच्चा क्या बोलता है, मैं बोलता है कि बच्चे चिकनी काट दो. इसके मन से पुलिस खत्म हो गया उस दिन कि अच्छा पुलिस अंकल ये होते हैं, मुझे जेल में जाएंगे, चक्की पीसेंगे उसके बाद. अब मम्मी परेशान कि अच्छा लगा था. फिर मम्मी ने इंस्ट्रूमेंट लाती है भूत. ये भूत प्रेत सबसे ज्यादा माँ की कहानी में जैसे करते हैं. मम्मी को काम नहीं चलता इनके बिना, बड़ा मुश्किल होता है मम्मी के लिए, वेरी टफ. बच्चा पालना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. छठी का दूध ज्यादा है बच्चा पालना. इसलिए मम्मी अपनी हुई किसी मम्मी में जब मेरे पैर छूते कि आपने ऐसे ऐसे बच्चे पाल दिए हैं, अब आपको पता नहीं आप क्या चीज. कलेक्टर बहुत छोटी बात है भाई, जैसे छठा बच्चा पाल दिया हो, उस माँ से बड़ा कोई पेशेंस, परसिवरेंस, जितनी वैल्यूज पढ़ेंगे सारी उसमें है.
तभी पाई पाई है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बच्चा समझ नहीं रहा, मम्मी बोलती है अरे भूत है, बच्चा कहता कौन है? बच्चे एक दिन एक आदमी जा रहा था गांव में, भूत आया उसको मार दिया, उसको उड़ा के ले गया। बच्चे क्या बड़ी अच्छा यहाँ आने वाला है। जब बच्चा रोता है ना उसको अट्रैक्शन होता है, रोते हुए बच्चे को उठा के ले जाता है। अब बच्चे की नानी चुप खुश रहा, कम जाएगा। मम्मी कहती 6 घंटे रुकता है, वेट करता है 6 घंटे कि बच्चा फिर रोया तो नहीं। अब बच्चे को वही ऑप्शन है 6 घंटे देखता रहे या उसको सो जाता हूँ, जब 6 घंटे चुप रहना तो बच्चा सो जाता है। मम्मी का काम चलता है भूत के नाम से बहुत बढ़िया तरीके से। इसे फिलोसफी में भूत असर साबित नहीं हुआ है, पर किसी मम्मी का भूत नहीं चलता है छोटे बच्चों। अब ये बताओ, मम्मी बोली भूत आ गया, बच्चा घबराया सो गया रात से, क्या भूत वेरीफाइड फैक्ट है? लेकिन उसका इम्पैक्ट है कि नहीं है? इम्पैक्ट है। भूत है नहीं मैटर नहीं करता, बच्चे को इस बात पे भरोसा है कि भूत है। The cognition the child has is he believes in the concept of bhoot as given by his mother. This cognition is enough to create attitudes in him. So cognition verified नहीं, बस ये भरोसा कि हाँ ऐसा होता है, बिलीफ होना चाहिए कि जो बात मैं जानता हूँ सही जानता हूँ, and that is adequate for me to create attitudes in me. Understood? This is cognition. Behavior के साथ हमने एक वर्ड लिखा है जो भी आपने सवाल पूछा था उसी का जवाब आना शुरू हो गया है, behavior. ये डिबेट कल डिटेल में आएगी, मैं हल्का सा हिंट कर रहा हूँ। ये बिलीव किया जाता है कि 3 एस्पेक्ट्स होने चाहिए, देयर शुड बी सम कॉग्निशन। जैसे बच्चे को भूत को लेके भूत होता है, रोते हुए बच्चे को पकड़ लिया जाता है और 6 घंटे वेट करता है, दिस इज कॉग्निशन। इमोशन के भूत का नाम सुनते ही कैसी रहती है, ये इमोशन है। जैसे भूत का हो जाता है, डर, खौफ, ये जो है फियर है, ये इमोशन है इसके अंदर भूत को लेकर। अब तीसरा है बिहेवियर। क्या जब जब इस बच्चे को बोला जाएगा भूत आ गया, ये भाग के घुस जाएगा के अंदर, नहीं घुसेगा, जनरली घुस जाएगा। So he has a tendency or willingness to behave according to his attitude. And as soon as these 3 components merge, it completes the concept of attitude. पर डिस्पोजिशन क्यों लिखा है हमने? ये लिखा सीधे बिहेवियर हो जाएगा। डेफिनेशन देने वाले कह सकते थे कि एटीट्यूड इज मेड ऑफ 3 components, cognition, affection and behavior. But they say cognition, affection and disposition to behave. क्यों? इसके 1000 एग्जांपल्स आपकी लाइफ में है। एक से बात कर लेते हैं। आपने आज कसम खाई रात को कि आज से ठीक से पढ़ाई करनी है, क्योंकि किसी के बारे में पता लगा वही बन गया, फिर आपको लगा अच्छा वही बन गया और भाई नहीं रहेगा, आज से भाई पड़ेगा। शेड्यूल बनाया आपने अमानवीय सा 20 आवर्स डे वाला शेड्यूल, और कल सुबह धूप बत्ती जलाई, देवताओं ने पुष्टि बरसाती और आप बैठे और आप बैठे एकदम एटीट्यूड पढ़ना चाहिए तरीके से आपको। वैसे बिहेवियर का चल रहा है, डिस्पोजिशन भी है, ठीक। और आपने सोच लिया कि आज अगर मेरा दोस्त आया उसकी जान पता नहीं कौन बचाएगा। आपने दरवाजे के बाहर एक पोस्टर बना के लगा दिया है, एंटर एट योर ऑन रिस्क। साथ में 2 हड्डियां बड़ी बड़ी, एक खोपड़ी मुंह वाली और 2 हड्डियां, और नीचे लिखा भाई पढ़ रहा है, अनबिलीवेबल बट ट्रू। उसके नीचे दूसरे ब्रैकेट में अनबिलीवेबल बट ट्रू, भाई पढ़ रहा है। और जो 2-3 दोस्त आपके हैं जो डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज्यादा आपको, उनको डिस्टर्ब करते हैं आप जगह करते हैं, आपको आज फील हो रहा है कि डिस्टर्ब करने आते हैं। आपने सबको पहले ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल दिया कि आज से पढ़ूंगा, अगर कोई आए तो कट जाएगा, ध्यान रखना। अब पढ़ाई कर रहे हैं, इतने में नॉक हुआ, आप पढ़ने बैठे थे, अभी पहली बार कंसेप्ट का सी समझना शुरू हुआ था, तभी टक 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 आपके मन में तुरंत 8-10 गालियां आई पूरे फ्लो में। आपने किसी तरह से दांत खींचे अपने कि वो चीज हो गई, आप उठे इस जो आएगा कटेगा आज तो, और आप दरवाजे के पास खोला दरवाजा और सामने भाई दोस्त है, कह रहे सच में पढ़ रहा है क्या? अब देखो होगा क्या। आपने कितना भी सोचा कि मारूंगा, गाली दूंगा, फलाना करूंगा, गुस्सा भी आ रहा है, बोलेंगे क्या, अरे आओ बैठ बैठ बैठ, मन गुस्सा आ रहा है, आप बोलेंगे अरे आओ बैठ बैठ, ये दोस्त है, आप मार भी सकते हैं दोस्ती में। मान लो आपके जो मकान मालिक है वो आ रहे हैं, बस बेटा सोचा हाल चाल पूछ ले, ठीक हो बेटा, आपने मेरा कि बुढ़े शुरू में चेहरा खिल गया इस बारे में कि मेरा हाल तो ठीक है, तेरा क्या होगा, पूछना किया उसने, दांत पीस से बोलना ठीक हो। फिर वो कहते हैं अच्छा बेटा एक चाय पिला दो, हाँ क्यों चाहिए था ना, चाय भी बनाओगे, उनके बर्तन भी धोगे, सब करोगे, ना गाली दोगे ना मुक्का मारोगे, कुछ नहीं करोगे, अंदर से कितना ही मन कर रहा हो करोगे नहीं, बिहेवियर होगा वही जो होना चाहिए, कितना तेज गुस्सा आ रहा हो करोगे नहीं। किसने कहा? अच्छा लगा तो देखना अपने हिसाब से। चलिए तो अब बात समझ पाए। Quite often it happens that you want to do a specific behavior, but exactly when the situation comes, you are not able to behave in that manner. You change your behavior, absolutely, or sometimes not absolutely to some extent. It means you will not be behaving always as your cognition and affection is there. Your behavior may be dependent on several other factors. जैसे अंकल है, आप डाल सकते हो, पर तुरंत दिमाग में वैल्यू आ गई, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, गुस्सा बहुत है, पर वैल्यू बड़ों का सम्मान करना, सम्मान करना, फिर आप धीरे धीरे हाथ ठीक सीधे हो जाते हैं, अच्छा अंकल जी ने चाय पीना, अच्छा बट मैं कहूँगा आप चाय पीजिए और मम्मा को सम्मान करिए, जबकि आपको नफरत हो रही है उससे, but you behave according to your value system, not exactly according to the immediate emotions. And that is why the psychologists, when defining attitude, they always use the term disposition for behavior or disposition to behave, which means you have the tendency or intention to behave accordingly, but many times you won't be able to behave exactly as you want to, but you have the willingness, you have the tendency. Understood? अब पूरा कंसेप्ट आपके सामने आ गया है जी। हाँ आएगा आएगा, कल आएगा, वो टेररिज्म भी आएगा, ठीक है, टेररिज्म जैसे ब्रेन वॉशिंग करने कैसे करते हैं, उसी का सुंदर नाम पर्सुएशन है ना, ब्रेन वॉशिंग को अच्छी भाषा में बोलते हैं पर्सुएशन। इफेक्टिव एक ही बात है, इफेक्ट को साइकोलॉजी में इमोशन के सेंस में कहते हैं। इमोशन क्या है? अच्छा ये देखो क्या समझ में आया कि पानी की बोतल है, मन में इमोशन आया, आया इमोशन, क्या इमोशन आया, इस वक्त इमोशन है आपको, क्या 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 इमोशन है बताइए? नहीं पीने की अच्छा इमोशन थोड़ा हुआ, वो तो एक सामान्य सी नीड। कैसे समझे? चलो सिंपल एग्जांपल लो, एक चीज है कि आपने कुछ क्लास में समझ नहीं, कॉग्निटिव मामला है, इसमें इमोशंस आपके नहीं आ रहे, समझो कि आप घर जा रहे, मम्मी का फोन आ गया, तो मम्मी वैसे नॉर्मल बात थी, पहले आपने नॉर्मल, फिर मम्मी अचानक बोलते बोलते गला उनका रुक गया, जैसे बोल रही, आप बोले क्या हुआ मम्मी, मम्मी कहती नहीं बेटा बात नहीं, और बोलते बोलते रो पड़ी। अब इस समय आपको जो हो रहा है वो इमोशन है, दिमाग काम नहीं कर रहा, आप चला मम्मी क्या हुआ, आ रहा हूं मैं, क्योंकि आपको चिंता है, कुछ दिक्कत है उनको। And when someone you love is in trouble, the kind of feelings you have, that is known as affect or emotion. Not only trouble, happiness भी होता है, many emotions. Fear is an emotion, anxiety is a state of emotions. तो करीब 40 के आसपास इमोशंस माने जाते हैं इन टोटलिटी, उनमें से कोई भी इमोशन अगर आपको फील होने लगे तो यू आर इन एन अफेक्टिव स्टेट और इमोटिव स्टेट, ठीक है। अफेक्ट एंड मूड, मूड तो बहुत छोटी बात हो गई। मूड का मतलब है कि इस मोमेंट ऑफ टाइम में आप किस तरह की एक्टिविटीज करने में इंक्लाइंड है, दैट इज मूड। मतलब ये कहते हैं कि मूड जब हमारा होता है किसी चीज का, तो उस समय एक स्पेसिफिक अफेक्ट या इमोशन हावी होता है हमारे ऊपर। So mood is very close to affection, affect or emotion because in a specific emotive state of mind you have a specific mood. ये आप कह सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी कैसे हुई आप लोगों को? अभी तक लोग सोशियोलॉजी और थोड़ा फिलोसफी पढ़ रहे थे, अब नया सब्जेक्ट शुरू हुआ साइकोलॉजी।
ऑल वेल, राइट? तो एक बार सारा रिवाइज करना, फिर इसकी डेफिनेशन करेंगे. सो फार व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू यू इज एटीट्यूड का मीनिंग है दिस इज एन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ए साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट. साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट मींस एनीथिंग अबाउट व्हिच वी कैन थिंक और फील. This orientation can be either positive or negative or both means ambivalent. And an attitude to become an attitude, it needs to have three components. First component is we need to have some cognition. एक simple language में शब्द लिखिए belief. The cognitive part in an attitude is known as belief. तो कोई belief होना चाहिए आपको. आपको belief है कि भूत होते हैं. That's all. This belief is adequate to create an emotion and then it can become an attitude. So belief is the cognitive component of attitude. Then you have the affective emotive property. That means you must have feelings or emotions associated with that belief. And then you must have the tendency or willingness to behave according to that belief. अब इन तीनों बातों को मिला के एक सेंटेंस समझ लें. जैसे आपने बचपन में एक ऐसे घर में समय गुजारा जहां नॉनवेज नहीं खाया जाता है. एग्जांपल बार बार आता है, उसे आसान समझना होगा. ठीक है, आपने बार बार सुना वो गलत चीज है, कॉग्निशन बन गया. पेरेंट्स ने बताया बेटा बहुत गंदी चीज है, हत्या होती है, मर्डर होता है, ये बहुत गहरा कॉग्निशन, बिलीफ बन गया. धीरे धीरे उस बिलीफ के साथ इमोशन भी आने लगे, नॉनवेज से नफरत भी आने लगी. एक बार नॉनवेज नहीं खाता हूं, एक नफरत भी करता हूं उसके साथ. एंड यू स्टार्टेड हेटिंग नॉनवेज एंड हेट इज एन इमोशन. एंड यू आल्सो हैव द डिस्पोजिशन टू बिहेव अकॉर्डिंगली, व्हिच मींस टू थिंग्स. वन, गिवन एन ऑप्शन यू विल नेवर ईट नॉनवेज. सेकंड, गिवन द ऑप्शन यू विल ट्राई टू ब्रेन वॉश समवन हु ईट्स नॉनवेज टू बी ए वेजिटेरियन. और कभी कभी कुछ लोग ये भी करते हैं कि मुर्गा बचाने के लिए आदमी मार देते हैं. मुर्गा मारेगा सो वेजिटेरियन. कई लोग एक्यूट होते बोलते हैं हम मांस तो खाएंगे पर प्याज डालना उसमें. अब समझ में पूरी कहानी. ये है एटीट्यूड. चलिए इसको डिफाइन करेंगे वर्ड्स में. आपने नोट लिखे हुए ये डेफिनेशन, अगर मैं इसको पूरा बोल दूं डेफिनेशन फॉर्म में, एन एटीट्यूड इज ए पॉजिटिव नेगेटिव. अच्छा लिखिए, जल्दी लिखिए क्या होता है डेफिनेशन, कैसे लिखेंगे. एन एटीट्यूड इज ए पॉजिटिव नेगेटिव और एम्बिवेलेंट ओरिएंटेशन. एन एटीट्यूड इज ए पॉजिटिव नेगेटिव और एम्बिवेलेंट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स ए साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्ट which has three components. Number one, a cognitive part or belief. Number two, an emotion associated with that belief. And number three, disposition to behave in accordance to that belief. क्लियर हो गया एकदम ठीक से. चलिए अब मैं दो वर्ड्स बता रहा हूं. शुरू में जो मॉडल था वो था सिंगल मॉडल. जब साइकोलॉजी की शुरुआत हुई तो पहला मॉडल था जिसको इफेक्टिव मॉडल बोलते हैं. दूसरा मॉडल बना जिसको कॉग्निटिव प्लस इफेक्टिव मॉडल बोलते हैं. और बाद में जो बना इसको बोलते हैं या तो CAB या ABC. ABC क्या है? इफेक्ट, बिहेवियर, कॉग्निशन. बट इफ यू गो इन द राइट प्रोसेस, कॉग्निशन, अफेक्शन, देन बिहेवियर. मुझे लगता है पूछेंगे बट समवन आस्क यू व्हाट इज द ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड. दिस इज द मॉडल व्हिच इज बीइंग एक्सेप्टेड नाउअडेज. दिस इज ABC मॉडल और द CAB मॉडल. ये हो गया व्हाट इज एटीट्यूड. यस, यू हैव डाउट. यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और अमंग कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड. जब कलर्स हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों ना करें. ये बताओ क्या है. ब्लू नहीं है, पानी है. पानी आज ब्लू है, पानी पानी. ठीक है, तो ये हो गया ओशन या सी जो कहना कह लीजिए. चलिए अभी इनको बनाई नहीं करी, कॉन्शियस तो बनाई नहीं है. बनाएंगे तो बताना किस कलर से बनाए. ग्रीन से बनाए थे. ठीक है, ये क्या है? पहाड़. ठीक है, किसने पूछा था आपने ना. हाँ, ये क्या है? पहाड़ है. ठीक. अब ये समझ लो कि ये ह्यूमन ब्रेन है. जितना समुद्र के ऊपर है वो है कॉन्शियस, और इतना ही कॉन्शियस होता है. ये एग्जांपल दिया सिग्मंड फ्रॉइड ने. कॉन्शियस माइंड उतना ही है जितना आइसबर्ग होता है समुद्र के बाहर. और मोर देन 90% ऑफ द माउंटेन इज बीनीथ द सी लेवल. तो आपके माइंड का 90% के आसपास सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है. इसमें से लगभग इतना हिस्सा मान लीजिए मेजर पार्ट इज सबकॉन्शियस एंड द लोएस्ट पार्ट इज अनकॉन्शियस. द डिफरेंस इज कि अनकॉन्शियस में क्या है, दिखना बंद हो जाता है. यू कैन नॉट सी व्हाट इज देयर इन अनकॉन्शियस. अब इसको सिंपल लैंग्वेज में कहना होगा. अभी आपके दिमाग में चलो कॉन्शियस है, व्हाट इज इन माय माइंड एंड आई एम एबल टू आइडेंटिफाई दैट इज कॉन्शियस. जैसे आपके कॉन्शियस माइंड में एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. ठीक. अब कॉन्शियस माइंड में कुछ है जो व्हिच इज नॉट राइट टू एक्सप्रेस, तो आप उसको सप्रेस करते हैं. ऐसा तो 50 बार होता होगा. यू हैव अ फीलिंग फॉर समवन, यू हैव अ डिजायर फॉर समथिंग व्हिच यू कैन नॉट एक्सप्रेस because of social pressures, because of moral pressures, because of some other reasons, whatever. So the desire which is coming into the conscious mind, but which cannot be expressed, and if expressed, it can be fatal or maybe problematic. You kind of suppress the desire. When you suppress your desire, it goes to the subconscious mind. तो subconscious mind में बहुत सारी पावर्स नहीं है. subconscious mind में बहुत हम कई चीजें ऐसी कर पाते हैं which we cannot do in the conscious levels. When something is in the subconscious mind, it has the possibility of coming back. Simple example, क्लास में बैठे किसी का मन करे सट्टा मारने का, बहुत जोर से कर रहा है, पर यहाँ नहीं मार सकते. यहाँ करेंगे तो धुआं फैल जाएगा, स्मोक अलार्म जल जाएगा, बहुत हो जाएगा. तो मन को दबाते हैं, नहीं, रुको रुको रुको, एक घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद मैंने समझाया तो ये इच्छा सबकॉन्शियस चाहिए. क्लास से बाहर निकल घर से आपने शुरू किया तो सबकॉन्शियस की इच्छा शांत हो गई. अगर नहीं करेंगे क्लास में सबकॉन्शियस वो सबकॉन्शियस में जाएगी. तूने कर घंटे बाद, कोई घंटा, अब तो कर फेफड़ा परेशान है, तो वो डिजायर ऐसे वापस आ जाती है. सो व्हेन यू पुट अ डिजायर सप्रेसिवली इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, इट कम्स बैक इनटू द कॉन्शियस माइंड सेइंग नाउ इट इज द टाइम, व्हाई डोंट यू डू दिस. कुछ डिजायर्स ऐसी होती हैं, नॉट डिजायर्स, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिनको कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते. जैसे मान लो बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को देख अच्छा लगता है, मान लो एक सेकंड के लिए, तो मन में आता काशी ना होती, आई सकता किसी के मन में, बट शी इज योर बेस्ट फ्रेंड. अभी आप उससे नहीं कह सकते कि तू क्यों है, उसके बॉयफ्रेंड से भी नहीं कह सकते कि एक बार सोच सकते हो ऐसे, ये भी कह सकते कि वो सोचता है खत्म हो जाएगा. तो आपके मन में जब भी भाव आएगा उसको सप्रेस करते रहेंगे बार बार, और ढक देंगे वो बीच में फिर ढक देंगे मार के, करते 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 वो दो तीन साल यहाँ चला गया. अब वो अनकॉन्शियस में चला गया. अनकॉन्शियस से वापसी का रास्ता नहीं है. सिग्मंड फ्रॉइड के सबसे यहाँ गेट है, यहाँ चौकीदार बैठा हुआ है, गेटकीपर. ही हैज अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स सेंट टू द अनकॉन्शियस. और जब कोई अंदर से बाहर आता है लिस्ट मैच करता है चेहरा, मैच करता है. तो अनकॉन्शियस से कोई भी चीज अगर आएगी कॉन्शियस में तो चेहरा बदल के आती है. एंड दिस इज द ड्रीम इंटरप्रिटेशन ऑफ सिग्मंड फ्रॉइड. ऑल द ड्रीम्स आर सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस ऑफ द डिजायर्स सप्रेस्ड टू द अनकॉन्शियस लेवल. तो लिस्ट में ये सब मतलब ये मतलब. सो वी डू नॉट नो व्हाट इज देयर इन द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ आवर्स. बचपन के छोटे छोटे एक्सपीरियंस अनकॉन्शियस कर जाते हैं एंड दे बिकम कॉम्प्लेक्सेस. इसका क्लासिकल केस है नेपोलियन. नेपोलियन ने दुनिया को हरा दिया.
बट आई हैव रेड एट सम प्लेसेस इंक्लूडिंग वन ऑफ ओशो's लेक्चर अबाउट नेपोलियन कि नेपोलियन जब हारा वाटर में तो उसके खिलाफ बिल्लियों का इस्तेमाल किया गया था। वो बहुत छोटा था, 1 साल का है, ये पड़ा हुआ था, बच्चे बड़े होते हैं आमतौर पे। तो एक बिल्ली आई, कैट आ गई, उसके ऊपर बैठ गया बेचारा, बिल्ली नोच के उसके मुंह को, वो खौफ के मारे चुप पड़ा रहा। बिल्ली ने खूब नोचा, चली गई और उसके मन में बैठ गया कि बिल्ली जो है ना सबसे खतरनाक चीज है। अब अनकॉन्शियस में चला गया। अगर किसी के अनकॉन्शियस में चला जाए वो दुनिया जीत लेगा, बिल्ली लेकर जाएगा। एंड दिस वाज द साइकोलॉजी ऑफ नेपोलियन एज कोटेड बाय ओशो। आई एम नॉट श्योर दिस हैपेंड बट ओशो लाइक दिस। इसलिए आप देखेंगे कई बार 6-6 फुट के लोग कॉकरोच दिख जाते हैं। लड़कियों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इस मामले में कि कॉकरोच या चूहा नीचे आ जाए एक बार, जब चूहा आपको देखता होगा वैसे वो देख नहीं पाओगे तो कहां तक है, वो इतना सा बेचारा और आप 5-5.5 फुट वाले, उसका हाल सोचिए क्या होता होगा। आपको देख के भाग के मारे, आप लोग ध्यान रख रहे हैं, आप उसको लेके भाग रहे हैं और उसी गलती से आपके पैर पे उछल गया या आप उसके पैर पे, तो दोनों प्रॉब्लम है इस समय कि कैसे। सो दिस इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी, सो दिस इज अनकॉन्शियस। ओके, भाई इसे ओवरकम करने का रास्ता मुझे नहीं पता है। सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत कोशिश की, ही गेव अ थियरी कॉल्ड साइकोएनालिसिस एंड ही यूज्ड टू ट्रीट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब उसके हिस्ट्री में जा जाके बात करना, करते करते समझने की कहां मामला फंसा हुआ है, फिर उसको ठीक करना। सो ही हैड एन अप्रोच बट इट्स नॉट इजी, वो इसमें नहीं आएगा, उसकी बात अलग से करेंगे, है ना। चलो देखो ये क्लास मोटिवेशन की चल रही है क्लास। अच्छा बताओ, जिसने किसी क्लाइंट को अपने ऊपर झेला है, कोई विक्टिम है, बहुत मुश्किल होगा बाहर निकलना, बहुत मुश्किल है। जैसे यूक्रेन और रशिया के लोग हैं वॉर के इलाके में, इस समय वो ट्रॉमा में है, उनकी साइकोलॉजी को संभालना बड़ा मुश्किल है। वन मोर फीचर ऑफ दिस इज, आपकी जिंदगी में जब कोई नियर या डियर की डेथ होगी, कभी तो होगी, है ना, when you are in 30 to 40 years of age, generally you have to see your parents or one of the parents going, and that's the most traumatic phase of your life. तो दुनिया के लोग सब लोगों के साथ कौन है, दुनिया के सब लोगों के साथ एक सिचुएशन है कि 6 महीने तक वो डिनाइल फेज में रहते हैं जनरली। इट हैपेंस टू ऑलमोस्ट एवरीवन। डिनाइल फेज का मतलब है सबकॉन्शियसली you feel that the parent has not died, you still have a belief that they are alive and you keep on behaving in the way that they are alive. ऐसे घर जाकर बोलेंगे अरे मम्मी कहाँ है, अरे यार तब ध्यान आएगा, ये होता रहेगा। सपने अक्सर आएंगे कि मम्मी आ गई, हमसे बात चल रही है आपकी। यस, हाँ बोलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन cognitive development and mental development? I'm not the right person to tell this difference, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी के उन पार्ट्स को पढ़ा नहीं है cognitive वाले को। Generally, I think they should be very alike or similar. But one, मैंने social psychology पढ़ा है for the UPSC syllabus, but the expert of cognitive psychology will be able to tell you what is the difference between these two branches. मैं क्या नहीं सकता, मेरी आदत है कि जो नहीं पता उसको कहना चाहिए। If you want me, I'll study and let you know what is the difference between these two. But cognitive psychology is not my area of expertise. Social psychology I can answer your questions completely. ठीक है, बैठिए। इसमें भूत आता है, भूत, भूत प्रेत होते हैं। आजा भूत प्रेत मान करवा दी, मानोगे मुझसे? जी जी जी, आप भाई। हाँ देखो, अगर सपने में कुछ ऐसा है जो आज तक आपने रियल लाइफ में देखा ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से आ रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जब आप 6 महीने की थी उस समय कुछ अनकॉन्शियस चला गया, विच इज नॉट इवन ए पार्ट ऑफ योर कॉन्शियस मेमोरी। अब 6 महीने की उम्र याद है अपनी? किसी को नहीं होती, किसी को हो तो प्रॉब्लम है। कोई कहना मुझे याद है, तुरंत उसको डॉक्टर के पास, किसी को याद नहीं रहता। और हमारे अनकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी चीजें उस एज में बन जाती। इवन मैंने आपको 2 दिन पहले एग्जांपल दिया था, उसको याद कीजिए कि आप सो रहे हैं, सपने में देखा कि आप हाथ पैर नहीं हिला पा रहे एकदम। उसकी रिलीजियस एक्सप्लेनेशन क्या है? गॉड हैज कम। और फ्रॉइड क्या बोल रहा है? जब आप थे एम्ब्रियो, जब फीटस थे, उस समय अंदर फंस गए थे, अब वो आपको याद नहीं आ रहा, यहाँ पर है, वो चेहरा बदल के आ रहा है सपने में आपके। सो यू डू नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन यू वर द फीटस, बट the memories of those times which got into unconscious, they are coming to your conscious mind or dream with different faces. कुछ चीज हो गई है, ये तो मिक्सिंग की बात है ड्रीम में कि कुछ चीजें जो आपने देखी, कुछ देखी, सब मिक्स हो जाती हैं आपस में। मुझे इतना नहीं आता ड्रीम के बारे में, है ना, मैं ड्रीम का एक्सपर्ट नहीं हूं, जो मैंने इन सबसे पढ़ा उतना ही है। डेजा वू क्या होता है? ये मोहतरमा पूछ रही है कि डेजा वू क्या होता है। आप लोगों ने इसका नाम सुना डेजा वू का? डेजा वू आप सबको होता है। डेजा वू का मतलब एक एक्सपीरियंस जब आपको यूं लगे कि ये पहले देख चुका हूं। ऐसा लगता है कभी ऐसा पहले हुआ है। धार्मिक लोग बोलते हैं बस ये वहीं से हो रहा है, लेकिन इसकी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अलग है। देखिए, डेजा वू इज अ सिचुएशन व्हेन यू फील सडनली that what is happening in your present has happened in the past, and sometimes you are even able to predict what will happen now, sometimes, not always. ये होता है सबके साथ। इसका मतलब आप सब एकदम ओके हैं, कुछ चिंता की बात नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन। साइकोलॉजी के लेवल पर पढ़िए बेसिक से एनसीईआरटी है। लेकिन डेजा वू जो होता है उसको कोई बेसिस नहीं, इसको इंट्यूटिव रीजनिंग कहते हैं। अरे जिनको शौक है इस चीज का ना, एक यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, मेरा अपना चैनल है, मैं उसे प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें 5 मिनट का वीडियो डेजा वू के बारे में ही है। तो जिनको शौक है डेजा वू करके देख लीजिए, 5-7 मिनट का है, उसमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डेजा वू क्या है उसको बता रहा है। यहाँ पे बता देते हैं। चल आइए। सो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एन एटीट्यूड इज। अब हम देखेंगे एटीट्यूड्स कैसे बनते हैं। अगर आपके एटीट्यूड्स एक खास किस्म के हैं, एटीट्यूड किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। मैंने परसों से कहा था कि इफ यू वियर व्हाइट क्लोथ्स मोर ऑफन, सो यू हैव अ पॉजिटिव ओरिएंटेशन फॉर व्हाइट, एंड दिस हैपेंस टू एवरीथिंग। इन पॉलिटिशियंस यू मे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर सम पॉलिटिशियंस, नेगेटिव फॉर सम। अब सवाल है कि ये एटीट्यूड जो हम सब डिफरेंट डिफरेंट हैं, कैसे बनते हैं, क्या रीजन होता है उसके बनने के पीछे। और इसी टॉपिक का सिलेबस में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स में 3 फैक्टर्स काम करते हैं। वन इज सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स। दूसरा होता है फैक्टर्स बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी या पर्सनल फैक्टर्स। और तीसरा आजकल हम यूज करने लगे हैं, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स। इसी सीक्वेंस में आपको इनका जिक्र करना है। तो सोशल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स, इन तीनों को समझते हैं। बट अगर सोशल फैक्टर्स बिहाइंड एटीट्यूड्स, ये बहुत छोटे छोटे सिंपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है जिसको बोलते हैं वांट सैटिस्फैक्शन, वांट सैटिस्फैक्शन। दूसरा होता है गिवन इंफॉर्मेशन। तीसरा होता है ग्रुप एफिलिएशन। चौथा है कल्चरल इंपैक्ट। ये 4 मेन है। और 5वें को हम कहते हैं सोशल लर्निंग। The last 2 और last 3 are very similar, but they are mentioned in the book, so you should also mention these as different points. तो ये तो बहुत सिंपल फैक्टर्स हैं। वन सैटिस्फैक्शन का क्या मतलब है? देखो, जिस चीज से आपको आपकी जरूरत पूरी होती है, यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग। जैसे आपको मान लीजिए 10-20 कपड़े होंगे, कोई एक कपड़ा ऐसा होगा जिसकी फिटिंग आपको बहुत कंफर्टेबल लगती है,
और आप उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने जाते हैं एंड यू कीप ऑन रिपीटिंग दैट जस्ट एवरी डे फॉर सेवरल इयर्स टू बी कंफर्टेबल है। बाकी लोग उससे एक ही है क्या करने है भाई कंफर्टेबल चीज होती है कंफर्ट है। सो यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्लोथ्स व्हिच आर कंफर्टेबल इन वेयरिंग। तो कौन सेटिस्फैक्शन। फिर कोई आपका फ्रेंड जो नोट्स बना देता है उसके प्रति क्या होगा पॉजिटिव होगा। किसी से नोट्स बनवाने लगातार पॉजिटिव है। वो कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी अगर यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड यू विल ऑलवेज रिमेन गुड फ्रेंड इन माय मेमोरीज तो पॉजिटिव है। So whatsoever helps you in your own satisfaction, you have a positive attitude for them, and those who are against your own satisfaction, you have a negative attitude for them. आप जिसके पड़ोस में बैठने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, वो किसी के पड़ोस में बैठ गया जाके, जब बैठ गई, तो वो जिसके पड़ोस में जाके बैठा या बैठी, उसके लिए आपके मन में कैसा एटीट्यूड आएगा? वही वाला है जिसको ट्रायंगल का थर्ड एंगल कहते हैं, एक्स ट्रायंगल, उसके प्रति जो फीलिंग आती है वो नेगेटिव होगी, सिंपल सी बात है, बिकॉज़ दिस पर्सन इज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये इंसान ना होता ना, तो मैं वहां बैठा होता, लेकिन मैं मार दूंगा तो मैं तिहाड़ बैठूंगा, मैं तब भी वहां नहीं बैठ पाऊंगा। सो हाउ कैन आई सिट विद हिम और हर? तो ये कॉन्सेप्ट जिससे हेल्प मेरे पॉजिटिव जैसे दिक्कत हो नेगेटिव, सो सिंपल गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है बचपन से किसी के बारे में, दैट हेल्प्स क्रिएटिंग ए बिलीफ एंड देन दिस बिलीफ बिकम्स एन एटीट्यूड। बचपन से सुना है खराब किसी कम्युनिटी के बारे में तो आप क्या सोचते हैं गंदे लोग होते हैं, बचपन से अच्छा सुना तो अच्छे लोग होते हैं। और कई कहावतें हम छोटे जब सुना कि मुंबई में पैसों की बरसात होती है, मेरे दिमाग में बैठ गया मानसून बड़ा क्लास में क्या है भेजोगे बरसात दिख नहीं आ रहा खाली पानी कर रहे हैं। तो मैंने मैम से पूछा मैम ये जो मुंबई में होती है बरसात वो लिखा नहीं इसमें, तो समझ गई कि गुरु है। तो मैंने बाद में समझाया कि बेटा मुहावरा मुहावरा होता है वो रियल नहीं होता, पर सुन तो बैठ गया दिमाग में। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है स्पेशली इफ द इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय अ क्रेडिबल पर्सन, आपके दिमाग में कैलकुलेटर रहता है हमेशा सबकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से। सो देयर इज अ क्रेडिबिलिटी कैलकुलेटर इन एवरीवन्स माइंड। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा मेरे पास आके बोलता है, मैं उसको कैसा हो सर, कैसा हो सर, बस अरे कितने हुए सर 90 तो ठीक है जी, इसमें 5 किए नहीं बाकी 5 पे डाउट है, नहीं 90 कंफर्म ठीक है। अच्छा और सी सेट 78 ठीक है, 2 छोड़ दिए 78 ठीक है। तो चुप है तो फिर बोलते हो जाएगा ना, मैं कहता हूं मुश्किल है थोड़ा सा, और आमतौर नहीं होता है क्योंकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का एटीट्यूड बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। वो पेपर सॉल्व करते हैं फिर अपने आंसर्स को की मानते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड की। इंस्टीट्यूट में करेंगे कुछ नहीं आता हवा में रहते हैं। और चौथे अटेम्प्ट वाला, इसलिए जब फर्स्ट वाले से बात करते हैं बच्चे तो मैं जनरली 4 से बात करता हूं के अंदर, सर 80 ठीक है मैं 20 सीखूंगा इससे, सिंपल कैलकुलेटर डिवाइड बाय 4। और फोर्थ वाला कुछ भी बोले मल्टीप्लाई बाय 1.5, वो बहुत कम करके बोलते हैं गालियां खा चुके थे समाज से, मुझे बोलते कैसा ठीक हुआ हो पाएगा कह नहीं सकते, मैच किया नहीं मैच नहीं किया, फिर भी कितना हुआ होगा 30-40 होगा 1.5 60 तो इसका हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी का बोलने का तरीका कम ज्यादा है। So when you are getting the information from someone, you have to understand the credibility of the information provider. And if the information provider has credibility, you will believe his words to be very true, and your belief system and attitude system will start getting shaped with the information given by this person. तीसरा ग्रुप एफिलिएशन, आप किस तरह के ग्रुप से एफिलिएटेड हैं, which kind of groups you are member of, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप की एटीट्यूड कैसे बनेंगे। देखिए ग्रुप्स की बात करते हैं, ग्रुप्स के कुछ टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप, एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। आपके नोट्स में प्राइमरी सेकेंडरी लिखा होगा और एक और वर्ड लिखा होगा रेफरेंस ग्रुप। सो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस ग्रुप्स, व्हाट इज द प्राइमरी ग्रुप, व्हाट इज द सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का मतलब होता है a group which is informal in nature, generally a small group, face to face relations, emotive or emotional relationship, ये चार चीजें जहां भी मिलें दैट इज ए प्राइमरी ग्रुप। साइज कितना छोटा, 2 3 4 5 10 15 बस। इनफॉर्मल, इमोशनल, फेस टू फेस रिलेशंस, यू नो एवरी ग्रुप मेंबर बाय फेस बाय नेम, यू हैव इंटरेक्शंस विद एवरी ग्रुप मेंबर, दैट इज ए प्राइमरी ग्रुप। फॉर एग्जांपल फैमिली, फैमिली इज ए प्राइमरी ग्रुप। फिर जो गैंग आप लोगों का है दैट इज ए प्राइमरी ग्रुप, गैंग में 4 लोग हैं, चारों नेता हैं, उनमें एकदम छंती अच्छे तरीके से, दैट इज ए प्राइमरी ग्रुप। तो ये बताएंगे जो छोटा वाला प्राइमरी ग्रुप है उसमें एक दूसरे का इंपैक्ट कम होता है ज्यादा होता है। सेकेंडरी ग्रुप जो होता है इसका अपोजिट है, इट इज अ फॉर्मल ग्रुप, इट कैन बी स्मॉल इट कैन बी बिग, इसमें फेस टू फेस रिलेशंस नहीं होते, नो फेस टू फेस रिलेशंस, और ये फॉर्मल है, नॉट इमोशनल, इट इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, दिस इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट नॉट ऑन इमोशंस। अब जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का व्हाट्सएप ग्रुप होगा एक, वो सेकेंडरी ग्रुप है, उसमें 100-200 लोग हैं, जिनमें 30-40 फूफा हैं, 30-40 जीजा टाइप के लोग हैं, 15-20 मौसी टाइप के लोग हैं, रोज सुबह सुबह 20 लोग भेजेंगे राम राम जी, रोज भेजेंगे, कभी फूल पत्ती कभी कोई फोटो भेज देते हैं, इतना कि आपको साइलेंट करना पड़ेगा ग्रुप पूरा। फिर 3-4 रोज रहेंगे, अगर इस साल इलेक्शन वोट सही नहीं डाला तो देश में डर की जाने वाली है। आप जानते नहीं कौन, नाम नहीं लिखा हुआ कौन है, नाम के बदले फूल बना हुआ किसी का, आपने प्रोफाइल देखा 3 डॉलर फूल बना हुआ वहां पर फोटो में किसी भगवान की फोटो लगा रखी है या किसी हिस्टोरिकल किसी फोटो लगा रखी है, आप समझ नहीं पाए कौन है यार इंसान, रोज ज्ञान देता है, नाम भी नहीं लिख रखा अपना। अब हो सकता है वही आदमी रोज मिलता है आपको शाम को, आपको पता नहीं वही आदमी है। दिस इज सेकेंडरी ग्रुप। जैसे क्लासरूम, आप सब एक ग्रुप में हैं बिकॉज़ यू आर स्टडीइंग इन द सेम क्लास, तो आप में से किसको सबके नाम पता है करो, 20 के भी नहीं बताओगे, कोई 2-4 नेता होंगे 20-25 को बताओगे क्योंकि उनकी क्लास में बच्चे बहुत सारे बैठे होंगे और वो इसलिए कि 1.5 साल से 1 साल बैठे होंगे, 20-25 का पता होगा, उससे बड़े को पता होगा। फेस टू फेस रिलेशंस क्या है, आप बाहर जाएंगे मेट्रो पे आमने सामने पहचान नहीं पाएंगे, किसी कोई नोट्स पढ़ रहा होगा एथिक्स क्लास आते हैं तुम उसी क्लास में हो, तो हाँ उसी क्लास में मैं नोट्स बना दूं तुम्हारे पहचानेंगे भी नहीं because the size of the group is so huge and the relationship is formal, so you don't have face to face relations, just the interest is common, you are pursuing the same interest like others, so you have a common interest but not the face to face relations and emotions क्या किसी को किसी के साथ है आपने से, जो सेकेंडरी ग्रुप के अंदर कई प्राइमरी ग्रुप हो सकते हैं, there can be many primary groups within a secondary group, so whenever you have a relationship with someone you have emotional affection with someone, that is not because you are the part of a secondary group, that is because you are the part of a primary group, but just being the part of a secondary group doesn't make you emotional for the members, and that is the crux. Now if your notes mentions that my attitudes are heavily impacted by my primary group affiliations and to some extent they are also affected by my secondary group affiliations, is that understandable? Fine. The last is the reference group. What is that? Reference group can be primary, can be secondary. देखो reference group क्या होता है, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि आपके पापा ने कहा, मम्मी ने कहा या नानी दादी ने कहा मेरे स्कूल आऊंगी सबसे मिलूंगी, और आपके मन में नहीं है तो अच्छा है, ऐसा कभी हुआ आपको? इसलिए नहीं करना पड़ेगी, इसलिए कि लोग कहेंगे ये तो नानी है, कि नानी ऐसी है, अगर ऐसी फीलिंग आई हो आती नहीं होगा, इफ यू हैव एनी टाइम फेल्ट that I do not want one of my groups to know that I also belong to this group,
दिस कैन बी फैमिली, दिस कैन बी समथिंग एल्स। मैंने आपका दोस्ती हुई किसी से और उसने पूछा कि ये जो सामने छठे वाले जानते हैं इनको, और आपके बेस्ट फ्रेंड हो, आपके नहीं कौन है ये लफंगे मैं जानता हूं, बिल्कुल जानते कौन लोग हैं यार ऐसे। आप नहीं चाहते कि उसको पता लगे कि आप जानते हैं आप में से यू डू नॉट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ देम। इसका मतलब आप अपनी आइडेंटिटी उससे अलग रखना चाहते हैं। इन द सिमिलर मैनर देयर आर सम ग्रुप्स व्हिच आइदर यू आर ए पार्ट ऑफ or you want to be a part of. If you are a part of that group, you want to tell everyone that I am a part of this group. That gives you dignity, that gives you status, esteem. And if not, still not, you want to be a part of that group. For example, you want to be the part of IAS association. That is a reference group for you. But till the time you are not the part of the IAS association, maybe you have many groups, maybe you have 3-4 friends which form a group, and you are so proud of your group that you every time tell people that I belong to that group. The group that sits in the last row, in the last seat, which doesn't study at all, I belong to that group. जो भी group है अगर आपको उसको लेके प्राउड वाली फीलिंग आती है. So reference groups are the groups can be primary and secondary. Maybe you are a member of them, maybe you want to be a member of them, but still you are not a member of them. Any group with which you want to be referred, with which you want to be associated, whether you are associated right now or not, maybe in future. If you are associated, you want to keep that association going on. If not, you want to be associated in the future. And that association gives you a sense of dignity. अब मुझे बताएं 3 सेंटेंस. My attitudes are heavily impacted by my primary and reference group affiliations. To some extent, my secondary groups also define my attitudes, especially about the same field. जैसे IAS association है, किसी IAS की नौकरी को लेकर सवाल हो गया. So attitude of the IAS association about that issue will be same. But otherwise, their attitudes in their lives will be quite different. But on a specific common interest, their attitude will be same. Otherwise, in secondary group, it's very less impact of secondary groups on our fundamental attitudes. Clear है ना? लास्ट टाइम ये है भाई कि हमारा प्राइमरी ग्रुप हमारे एटीट्यूड को डिफाइन करता है. 13 साल के बच्चों से पूछो इलेक्शन से पहले बेटा वोट किसको दोगे, है कद्दू 12 साल का, दे नहीं सकता है वोट. अब इलेक्शन आएगा ना 24 में, 8 साल के बच्चों से पूछना, झंडे घूमते रहते हैं इलेक्शन से पहले, अंतर अंतर वोट देना. आप कहेंगे वोट तो देंगे, वोट आपने वोट किसको देना है, बोले झालू को देना है या कमल को देना है. ऐसे तो आप सोचिए इतना छोटा सा बच्चा इतना जानता है, कुछ नहीं जानता कद्दू. उसके मम्मी पापा बात करते हैं कि कमल जिताना है, झंडे झंडे बन गया, कमल कमल कर रहा है. तो उसका प्राइमरी ग्रुप है फैमिली, और फैमिली ने जो बोला वो बन गया एटीट्यूड. ऐसे ही होता है. तो हमारे प्राइमरी ग्रुप डिफाइन करते हैं हमारे एटीट्यूड क्या हो, रेफरेंस ग्रुप डिफाइन करते हैं. सिंपल है, आपकी क्लास में 3-4 बच्चों का ग्रुप है, बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, आप चाहते हो उनमें शामिल होना, उनसे जुड़ना. एक दिन पता लगा कि उन चारों ने फिल्म देखी, अंग्रेजी बड़ी अच्छी फिल्म है, किसी थीम पे है. अब आप खुद फिल्म देख जाएंगे कि भाई वो देख रहे हैं तो कुछ बात होगी, मैं देखूंगा. फिर पता लगा खाना खाने जाते हैं खास रेस्टोरेंट में, आप पहुंचेंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि रेफरेंस ग्रुप है ना. रेफरेंस ग्रुप पे लोग जो जो हरकतें करेंगे वो सब करेंगे बिकॉज़ यू वांट टू लाइक देम. बट इन सेकेंडरी ग्रुप इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता. पहले तो सेकेंडरी ग्रुप बहुत बड़े होते हैं, वो सब एक जैसे करते नहीं है. जैसे कोई कहेगा इस बैच के बच्चे मेट्रो से जाते हैं, आधा झूठ. सब बड़े लगेंगे भाई, इस बैच के बच्चों को लाल कपड़े पसंद है, झूठ. इतने बड़े ग्रुप पे कोई फर्क नहीं होगा. And even if something applies, it's not necessary on your part to accept it because you are not emotionally attached to this group. So secondary groups do not have emotional attachment. That is why their impact on our attitudes is least. The maximum impact on us on our attitudes comes from the primary and the reference groups. चौथा है कल्चरल इम्पैक्ट. आप जिस कल्चर से हैं उसका इम्पैक्ट पता है. सो योर कल्चरल वैल्यूज एंड कल्चरल नॉर्म्स फॉर्म योर एटीट्यूड्स. अब जिस कल्चर से हमारी वैल्यूज और नॉर्म वो एटीट्यूड बनेंगे. ये तो समझ पाएंगे, सोच सकते हैं. अब जिस कल्चर से होंगे वैसा ही होगा. सोशल लर्निंग इज समथिंग. इसमें केवल 3 वर्ड्स आपको बेसिकली समझने हैं. चीज वही है सोशल लर्निंग. मैंने आपसे एक शब्द का जिक्र किया, क्लासिकल कंडीशनिंग. दैट इज काइंड ऑफ सोशल लर्निंग. सोशल लर्निंग के 3 मॉडल्स का जिक्र किया जाता है. और सोशल लर्निंग का बेसिक मतलब है व्हेन द सोसाइटी इज टीचिंग यू without letting you know that it is teaching you. It's teaching subconsciously. So the subconscious teaching given to the children specifically is known as social learning. 3 मॉडल साइकोलॉजी में चलते हैं. ये तीनों वर्ड्स आप लिख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. इसका पहला मॉडल चलता है जिसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग. ठीक. दूसरा है जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग. और तीसरा बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. आपको सिर्फ 3 वर्ड्स कोट कर देने हैं, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं कंसेप्ट समझने के लिए, उससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कंसेप्ट है, उसके नाम से पॉपुलर है, उसका नाम है एल्बर्ट बेंडुरा. एल्बर्ट बंदुरा है कि बेंडुरा पता नहीं जो भी है, हम तो बेंडुरा बोलते हैं. बंदर बोलना सकता है कि ये नाम हो गया ना, तो बेंडुरा सीम्स टू बी मोर एलीट एंड एकेडमिक नेम. इतना भारी खतरनाक नाम है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. मतलब कुछ नहीं. इसका मतलब ये है कि छोटा बच्चा आप उसे क्या सिखाते हैं वो नहीं सीखता, वो सीखता है जो वो देखता है, जो ऑब्जर्व करता है. सो चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, नॉट बाय इंस्ट्रक्शंस. मम्मी का बेटा झूठ बोलना पाप है, कभी झूठ मत बोलना बेटा. इतने मम्मी पर फोन आ गया, मम्मी का बेटा इनको बोलो मम्मी नहीं है. बच्चा कह रहा है यार, कंफ्यूज हो गया बच्चा. अब ये भी कह रही झूठ नहीं बोलना है. अब कह रही फोन पे बोल रही मम्मी फोन घर पे छोड़ के बाइक चली गई है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ. फिर बच्चा बोलता है आंटी मम्मी कह रही मम्मी घर पे नहीं है. बच्चों के तो भगवान बसता है, दुष्ट शैतान होते हैं, सब मिट्टी में चली मार के. तो बच्चा समझ गया कि झूठ बोलना है, यही काम आता है. फिर नेक्स्ट स्कूल से मम्मी ने पूछा बेटा सब ठीक है, बोला हाँ सब ठीक है. असली बात मम्मी रख ली, बताना नहीं है, छुपाना है. फिर मम्मी कहती है हमारा बच्चा हमसे सच नहीं बोलता, क्या करें, इतना सिखाया बच्चे को. इसको क्या ऑब्जर्वेशन नहीं. पापा कहते बेटा सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है, थोड़ी निकालिए सिगरेट. चुप चुप बच्चे 3 बच्चे देखे बच्चे आपको खराब कर. फिर पापा एक खांसी चल रहा है, खाओ बेटा लंच खराब हुआ है, मरने वाला हूं बेटा, बस तुम मत पीना बेटा, मैं तो मर गया. दाना शुरू एकदम मर गया, तुम मत करना बेटा. बच्चा सोच रहा है कि एक बार ट्राई करेंगे, कुछ तो बात है इसमें, मेरा बाप मर गया इसके पीछे कुछ तो खास बात है इसमें. तो देख रही है कि बड़े चले छोड़ के बात, कुछ तो बात है इसमें, तो ट्राई तो करेंगे एक बार. इनसे जल्दी छोड़ दी ताकि बच्चे ट्राई करेंगे. इसलिए ये इन्होंने रिसर्च की साबित किया कि व्हाट यू टीच योर चिल्ड्रन दे डोंट लर्न दैट, दे लर्न बाय सीइंग व्हाट डू यू डू. दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. तो बच्चे की पर्सनैलिटी अपने पेरेंट्स, टीचर्स और मैन स्पेशली को देख के बनती है. इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बाय कैरेट एंड स्टिक. गधे तो काम करो, डंडा दिखाओ काम करो. सो चिल्ड्रन आर टॉट विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स. फिल्म में दिखाते हैं किसी गुंडागर्दी वाली यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा हो और जो सुपर गुंडा एग्जाम देने आया है, जब एग्जाम में सबके चक्कर में चीटिंग चल रही, वो एक जेब से निकलता चाकू, एक से निकलता पैसे, टेबल पे पैसे पैसे चाकू डाल देता है कि अपनी चॉइस से देख लो, मैं तो चीटिंग करूंगा.
या तो पैसे लेके चले जाओ वरना चाकू है, एक टेबल में भी मिल जाता है। तो फिर इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, वो देखता ही नहीं उसको, वो कहाँ बैठा है चुपचाप बैठ जाता है। सिस्टम चलता है ऐसे। आप आईपीएस बनने को क्या करेंगे, ठाई ठाई चाकू को, चाकू डाल देता है। चलिए असली क्लासिकल कंडीशन, इसका मतलब क्या देखिए क्लासिकल कंडीशन कौन सा, पावलोव, Russian psychologist, one of the greatest psychologists of this universe. Pavlov has given such a great contribution to psychology, especially education psychology, and his theory is known as classical conditioning, and sometimes it is also referred to as Pavlovian conditioning model, which is name. टेक्निकल बहुत समझने की जरूरत नहीं है, I'm just giving a simple reference to understand what he wanted to say. आपके लिए इस नाम का इस्तेमाल करना should be adequate. देखो एक चीज है स्टिमुलस 1, एक होता है स्टिमुलस 2, एक होता है रिस्पांस। एक सिंपल एग्जांपल, पावलोव की बात का एग्जांपल, जो मैं खुद एक्सपेरिमेंट किया उसको करने की बात। तो जैसे हमारे घर पे छोटा सा डॉग है, मतलब बायोलॉजिकली उसको डॉग कहते हैं, वैसे उसके नीचे वैसे है नहीं। हम लोग खरगोश के द्वारा देख रहे हैं, उसको डॉग कहा जाता है टेक्निकली वो डॉग। तो उसको एक खतरनाक बीमारी है, वो हमारे बीच में कंपटीशन रहता है। उसको एक हैबिट, एक चीज को बहुत पसंद है खाना, बहुत पसंद है उसका, स्नैक्स होते हैं, डॉग स्नैक्स होते हैं, उसको बहुत पसंद है और आ जाता है। 10-11 साल का हो गया है, बचपन से खा रहा है, आज भी उतना ही उतावला है उसके पीछे जितना बचपन में था। नाम सुनते पागल हो जाता है उसका। अब तो हिंदी भी समझ लेता है। ठीक ठाक वर्ड्स पहचानता है, उसको मीनिंग वर्ड्स भी समझ लेता है क्या होने वाला है। तो धीरे-धीरे एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई हमारे बीच में कि मैं जब भी बाहर से घर में घुसता हूँ, तो जैसे ही मैं घुसता हूँ मेरे पास आके ऐसे करने लगता है, इसका मतलब दो तुम आए हो। अच्छा बदतमीजी इतना है कि एक दो बार पैसा हो, घर के बाहर गया, मैं घर के बाहर चला गया, तो भाई बाहर से आए हो, कोई अंडरस्टैंडिंग है जब भी बाहर से आऊंगा तो तुम पहुंच जाएंगे, दो पैसा दो, बाहर से आए हो तो फिर दे देते हैं, है ना। तो उसको उसकी फेवरेट चीज हम निकाल के उसको देते हैं, मस्त लगता है। तो मैं एक्सपेरिमेंट किया पावलोव वाला, पावलोव क्या समझ में आएगा। तो जैसे मैं दरवाजे की बेल बजाऊंगा, जैसे बेल बजती ऊपर लगा जाता है कि अब मिलेगा मुझे, बेल बजी। बेल बजने से 10 सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले जो कार का इंजन है वो कार वहां पहुंचती है, इंजन बंद होता है। ठीक। तो डॉग को कंफ्यूज करना तो बेल चेंज कर दीजिए लगी, 3 सेकंड कंफ्यूजन रहता है। फिर समझ आता है अच्छा ये चक्कर है, ये वाली आवाज आपकी वो वही 3 सेकंड। और लोग कहते हैं डॉग इंटेलिजेंट नहीं होते, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, खतरनाक इंटेलिजेंट होते हैं। सो दिस इज स्टिमुलस 1, कार रुकी, उसको आवाज उसको आवाज आती है, कार रुकी, वो वेट कर रहा है। जैसे बेल बजी उसके मुंह से पानी गिरना शुरू, खुशी की मारी, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और फिर मैं गुजर में सबसे पहले मैं उसको तो शांत हो जाए, फिर सब बात करेंगे, पहले उस भाई का कहना जरूरी है क्योंकि उसमें समझ सकते हैं कि पेशेंस रखो, परसिवरेंस रखो, सिविल सर्विस वैल्यू समझो, कैसे समझाए वो तो उतावला हो जाता है। तो फिर हमने देखा कि बेल बजते ही उसके मुंह में पानी आने लगता था। जब उसके दिमाग में लिंक बन गया कि कार रुकेगी, 10 सेकंड बाद बेल बजेगी, कुछ दिन बाद कार रुकते पानी आने लग गया, कार रुकते पानी आ गया उसके मुंह में। अच्छा उसको ये पहचान कौन सी कार है, ये नहीं कोई कार रुकते पानी आने लग गया, ऐसा नहीं होता। ये परफेक्टली अंडरस्टैंड दिस इज द राइट कार। इसको बोलते हैं पावलोवियन कंडीशनिंग, व्हेन बेसिकली यू आर रिस्पोंडिंग टू स्टिमुलस 2, बट स्टिमुलस 2 is always coming just after stimulus 1. So in the mind we get an association between stimulus 1 and stimulus 2, and after a point of time stimulus 2 is not required to behave, which we used to behave on stimulus 2 will start behaving on the stimulus 1, and this happens about the understanding of various social groups to the children. मैंने एग्जांपल दिया, पावलोव का व्हाइट औरत है, ब्लैक आदमी देखा, बच्चे को देखा। अब धीरे-धीरे क्या होगा, एसोसिएशन ऐसा होगा कि जो माँ वाला बीच में हिस्सा है, माँ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही उसको करने लग जाएगा। तो ये टेक्निकली स्टिमुलस 2 is no more required, stimulus 1 is adequate to evoke the emotions or the responses which stimulus 2 used to evoke earlier. क्लियर हो गया, चलिए। सो कमिंग बैक, जब हम कहते हैं कि सोशल लर्निंग हेल्प करती है, तो सोशल लर्निंग के 3 मॉडल्स हो गए क्लासिकल कंडीशनिंग। आप सिर्फ एक सेंटेंस लिखना, सोशल लर्निंग कैन बी अंडरस्टूड एज क्लासिकल कंडीशनिंग ब्रैकेट में पावलोव, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग ब्रैकेट में मांद्रा। दे बिलीव दैट चाइल्ड लर्न्स एटीट्यूड्स थ्रू ऑब्जर्विंग पेरेंट्स एंड सोसाइटी, दैट्स इतना ही लिखना अनलेस दे आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब ये देखिए पूरा पहला एस्पेक्ट सोशल फैक्टर्स। वी हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, एंड सो फार आउट ऑफ द 3 वी हैव डिस्कस्ड सोशल फैक्टर्स। सो देयर आर ऑलमोस्ट 6-7 सोशल फैक्टर्स, लेकिन सपोर्टेड मानिंग 7, एक मानिंग 5 सोशल फैक्टर्स। नाउ कमिंग टू द पर्सनल फैक्टर्स। यस, हां, कैम्ब्रिज में हमने कैम्ब्रिज से किया ना, एक बार फिर से लास्ट सेंटेंस बोलिए, ये कह रहे हैं व्हेन वी सी द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अबाउट दिस कंसेप्ट, क्या है भाई, ऐसा है क्या? सेंट स्टीफेंस में तो कम से कम 2000 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से एक 3 बच्चा होता होगा। हां, सेंट स्टीफेंस में कितने बच्चे पढ़ते हैं? द सेम इज अबाउट स्टैनफोर्ड एटसेट्रा। अमेरिका में तो जो सिलेक्शंस होते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है। हां, ये जरूरी है कि बड़े लोगों के बच्चे वहां सेट हो जाते हैं ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, बट दे आर नॉट द ओनली पीपल स्टडीइंग देयर। चलिए सेकंड इज पर्सनल फैक्टर्स। आप लोग अच्छे हैं ना? पर्सनल फैक्टर्स का मतलब ये है कि जब एटीट्यूड्स बनते हैं, फर्स्ट हमने देखा सोशल फैक्टर्स। सो इफ आई बिलोंग टू ए सोशल ग्रुप और ए कम्युनिटी और ए प्राइमरी और ए सेकेंडरी ग्रुप, अभी आप लोगों का ध्यान यहाँ कम है, वेट करो 2 मिनट, आप तो फिर सामने देखिए, आप अपने बात कर दीजिए। ये जो बात आप बहुत जरूरी कर रहे हैं ना, याद रखने के बाद भी हो सकती है, विश्वास रखिए, याद रखने कुछ नहीं होने वाला है ऐसा कि ये बात आपकी इंपॉर्टेंट ना रहे, ठीक है। चलो, तो पहले हमने सोशल फैक्टर्स समझा, जिसका मतलब था माय एटीट्यूड्स आर बेस्ड ऑन सम सोशल फैक्टर्स व्हिच इंक्लूड माय कल्चर, व्हिच इंक्लूड द सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटीज आई बिलोंग टू, व्हिच इंक्लूड द प्राइमरी एंड रेफरेंस ग्रुप्स व्हिच आई बिलोंग टू और आई वांट टू बिलोंग टू। ये तो हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। इज देयर समथिंग इन माय पर्सनैलिटी व्हिच कैन डिसाइड और डिफाइन व्हाट एटीट्यूड्स विल आई एक्सेप्ट एंड व्हाट एटीट्यूड्स आई विल नॉट एक्सेप्ट? इसको बोलते हैं पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में हम 2-3 की बात कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हमारी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, इंटेलिजेंस हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसमें से इंटेलिजेंस होती है। एक हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट किन चीजों में है, ये चीजें पर्सनल है, मेरा इंटेलिजेंस का लेवल तो मेरा ही है, जैसे मेरा इंटरेस्ट, मेरा अपना इंटरेस्ट है। सो इफ माय एटीट्यूड्स हैव सम इंपैक्ट ऑफ माय इंटेलिजेंस एंड ऑफ माय इंटरेस्ट, इट मींस दिस विल बी द पर्सनल फैक्टर्स नॉट द सोशल फैक्टर्स ऑफ माय एटीट्यूड्स। फॉर एग्जांपल, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, हम इसको एक क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, एक फैक्टर वो भी हो सकता है। अब देखिए कैसे, आपको लगता है कि इंटेलिजेंस का लेवल डिफरेंट होने से हमारे एटीट्यूड्स चेंज हो सकते हैं? इस पर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की, स्पेसिफिकली ऑन पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। इंडिया में हुई नहीं, आप एज्यूम कर सकते हैं। सो ही डिसाइडेड टू रिसर्च अबाउट 2 फैक्टर्स कि इंडिविजुअल का आईक्यू लेवल क्या है और उसकी पॉलिटिकल चॉइस क्या है। इन अमेरिका पॉलिटिकल चॉइस जनरली मींस रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स। So he had an hypothesis that with the change in IQ levels, the attitudes toward political parties also change. और उसका हाइपोथेसिस ये था, आप पता नहीं कितना समझेंगे तो शायद एप्रिशिएट करें उसके रिसर्च को। कम्युनल होने के लिए, कास्टिस्ट होने के लिए आईक्यू ज्यादा होना ठीक है या कम होना ठीक है? ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, दो पार्टीज हैं, एक पार्टी कहती है कि हम एचडीआई और हम जेंडर गैप इंडेक्स इन सब की बात करके इलेक्शन फाइट करेंगे, और एक कहते हैं इलेक्शन बोलेंगे तुम इस जात के हो, तुम इस मजहब के हो, तुम इस भाषा के हो, हम इस पर बात करेंगे। ये जिस वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के वोटर्स का आईक्यू कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। देखो आईक्यू जितना कम है उतनी मोटी बात समझ में आती है, बारीक बात समझने के लिए आईक्यू ज्यादा चाहिए, मोटी बात समझने के लिए और मोटी कॉन्क्रीट इनटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट समझने के लिए ज्यादा आईक्यू चाहिए। And to understand something which is very concrete and tangible, you need less IQ levels.
And the hypothesis of this person, which I'll discuss in political attitudes with his name and research, the hypothesis was the Republicans generally have lesser IQ levels than the Democrats. क्योंकि हमारे Republicans वही राइट विंग वाले हैं, ओ इंडियन को यहाँ से मैक्सिकन को यहाँ से दीवार बना दो बॉर्डर पे, आगे कई दीवार इतना आसान काम है, नहीं बना दीवार बना दो, इमोशन से चलने वाले लोग, इमोशन खत्म करो, वही नेचर है। तो ये जो अप्रोच है, उसने कहा कि मुझे लगता है कि जिनका IQ कम है, they will be most likely impacted or attracted towards Republican Party, and the ones with higher IQ will be more likely attracted to Democrat Party. कुछ exceptions होंगे in general उसने कहा, and when he correlated in psychology, we correlate to, I mean two kinds of data, and when he correlated both the things, he found that his hypothesis was absolutely right. With the rise of IQ levels, the choice generally went towards Democratic Party. With the decrease in IQ levels, the proportion of Republican Party gained heavily. कई लोगों ने कहा कि रिसर्च गलत थी, कुछ लोगों की रिसर्च ठीक थी, पर आप ये तो मान ही सकते हैं कि इंटेलिजेंस के लेवल से हमारे एटीट्यूड चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करें, जिन बच्चों का IQ लेवल थोड़ा सा कम होगा स्कूल में कॉलेज में कहीं भी, मैथमेटिक्स को लेकर क्या होगा, मजेदार है या खतरनाक है, खतरनाक है। तो जिनका IQ बहुत जबरदस्त है, खतरनाक होता है, ये तो वरदान है, स्पिरिचुअल ब्लिस है, मैथमेटिक्स स्पिरिचुअल ब्लिस, एंड दिस एटीट्यूड इज बीइंग इंपैक्टेड बाय द IQ levels. So one thing is intelligence or the IQ levels can decide our attitudes to some extent. Second is interest. कुछ इंटरेस्ट जो सोशल एटमॉस्फेयर से डेवलप होते हैं, बट वी हैव फ्यू इंटरेस्ट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज में ज्यादा है, शुरू से ज्यादा है, तो आपका एटीट्यूड उसके फेवर में होगा, बेशक आपके कल्चर उसके खिलाफ हो। So if there is interest from the childhood, you will have a positive attitude even if your culture is not supporting that attitude. But since you have the interest, you will be having that attitude. ऐसे क्रिएटिविटी का मामला होता है। अगर आपका क्रिएटिविटी का लेवल हाई है, क्रिएटिविटी का दो मतलब है क्रिएट करना और क्रिएशन को समझना। तो हम सब लोगों का लेवल म्यूजिक में ना बहुत ही खराब टाइप का लेवल है। क्लासिकल म्यूजिक सुनने बैठे हैं तो क्या कर रहा है यार, ठीक से गाना नहीं आता। अरे सिंगर तो ये होता है, तनी सिंगर सिंगर तो चार बोतल वोडका का क्या रिदम है, क्या मैसेज है, देश का संदेश देता है। और क्लासिकल म्यूजिक लगाती है अपनी ना यार, वो भी आर्ट है यार, तो हमें ऐसा लगता है। फिर मॉडर्न देखने लगे आपको आदत है देखने की कि एक पेंटिंग है, उसके 3.5 पहाड़ हैं, आधा सूरज है, एक तिरछी नदी है, 2 नारियल के पेड़ हैं, एक झोपड़ी है जिसमें 2 खिड़कियां हैं और एक दरवाजा जिससे रास्ता ऐसे निकला हुआ है। आप बचपन से वही पेंटिंग बनाने के बड़े हुए, वही सब देखी पेंटिंग, उसके बियॉन्ड आपकी इमेजिनेशन आर्टिस्टिक एस्थेटिक जाती नहीं। और कोई आपको लेके मॉडर्न आर्ट गैलरी, अब चलो 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 फिर कहा चलो हम कुछ पेंटिंग देखते हैं, आपको लेके कैसी है, हमने कहा है ये पेंटिंग है भाई, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, तो रहे तो अब वो बेचारा सीधा सीधा देख रहा है, पेंटिंग होती है इनसे इंग्रेड करें मॉडर्न आर्ट। नाउ व्हाट इज द रीजन इज मतलब हम एप्रिशिएट कर नहीं पा रहे हैं, या वो एप्रिशिएट करने के लायक नहीं है, लायक नहीं है। क्या बात है, हनी सिंह को भारत में मिलेगा जल्दी अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो पंडित भीमसेन जोशी हो, कुमार गंधर्व हो, सपोर्ट ऐसी। इसका मतलब आपकी क्रिएटिविटी का लेवल अगर कम है, यू वोंट बी एबल टू इवन अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ दैट पर्सन। ये खाने पे भी अप्लाई होता है, किसी ने बहुत कहीं से कुछ बनाया, 3 एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर मनोस आ गया, खिलाई बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, बोले कि इसमें ये चीज नहीं है, वो चीज है, उसने खा भी लिया कब से, फिर पूछा कैसा लगा, हाँ ठीक है, कुछ नया लगा नहीं, अब उसको एस्थेटिक सेंस नहीं मिल जाएगा, कैसे अप्रिशिएट करेगा। और दूसरा मेरा बोलेगा पहला टेस्ट देख, क्या बात है, तुमने प्याज पहले भुने होंगे उसके बाद डाले ना, अब इनका फुल मिला ठीक से, क्योंकि आर्ट को एप्रिशिएट करने की समझ तो हो सामने वाले में। And if the level of creativity is very low, this person will not be able to have minute attitudes. मोटे attitudes है, मोटे टेस्टी हर चीज है, उसमें क्या है, ये नहीं पता टेस्टी है, उसमें है कि नहीं पता, मीठा मीठा टेस्टी है बस, तो बहुत मोटी बात करेगा, बहुत ही मोटी बात, ग्रॉस टाइप की बात करेगा, उससे सटल बात करने का जो स्टाइल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड, these are the personal factors and the final range is about the biological and genetic। भाई सर्दी ज्यादा हो गई, बच्चे करें थोड़ा सा कम करो। IQ और इंट्यूशन क्या मतलब, IQ और इंट्यूशन कौन किस पे बेस्ड है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए एक लेवल की IQ चाहिए, बेसिक लेवल, उसके बाद देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन IQ एंड क्रिएटिविटी। हम लोग 2 दिन बाद इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, उसे याद दिलाना, लिंक समझा बनाएंगे। So to be creative you need a minimum level of intelligence, but after that there is no specific connection between intelligence and creativity। तो का उसके बाद तो चाहिए, किसी को नहीं पता। अभी ये जो न्यूरोलॉजिकल स्टडीज है बहुत मुकम्मल फैसले पर पहुंची नहीं है। न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी व्हिच इज स्टडीइंग ऑल द कनेक्शंस बिटवीन द हेड। काफी कुछ सीख चुके हैं लोग, बट सो फार दे हैव नॉट बीन एबल टू आंसर द फाइनल क्वेश्चंस, सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड देयर आर सम जर्नल्स, आई रेफर टू वन जर्नल व्हिच गिव्स कीप्स गिविंग लेटेस्ट रिसर्चेस। सो फार देयर इज नो स्पेसिफिक रिजल्ट अबाउट क्रिएटिविटी एंड द रीजंस देयरऑफ। ठीक है, हां जी बोलिए, एवरेज IQ और सोसाइटी का IQ में क्या कोरिलेशन है, मैं कुछ नहीं समझ पाया, सिर्फ एक IQ सुना मुझे, एक सोसाइटी सुना, लेकिन इसका आंसर ये है, जो भी इसका आंसर ये है कि परसों IQ पढ़ेंगे, और जब IQ पढ़ेंगे तो उससे जवाब देंगे। IQ के सारे प्रश्न उस दिन के लिए छोड़ दो, IQ पढ़ेंगे, ठीक है, अभी ये पढ़ लेते हैं। So the final subtopic for today is in the formation of attitudes we have so far understood 2 major factors, social and personal. The final group of factors behind the formation of attitudes is biological and genetic. So हम कह सकते हैं कि genetic को कर लेते हैं, biological except genetic को कर लेते हैं। So there can be some biological factors as well. For example, age can be a biological factor to decide or impact our attitudes. आपको अच्छे से पता है कि जैसे एज चेंज होती है, हमारा सोचने का तरीका सब चेंज होने लगता है। आपके पेरेंट्स के जो एटीट्यूड्स हैं, आपको लगता है ये लोग क्यों ऐसे हैं, और 30 साल बाद किसी को आपके बारे में ठीक नहीं लगेगा कि ऐसे क्यों है। बार बार याद दिलाना, जो हीरो बन रहे हैं, 30 साल बाद ऐसी कैसी होने वाली है आपकी, आपके ही बच्चों के हाथों, तो वो उतना ही रिजेक्ट करेंगे आप जितना भी आप कर रहे हैं। ऐसे कैसे लोग हैं, ये अजीब टाइप के, अजीब बुढ़ा है, समझता नहीं बात। So age is one of the factors which decide our attitudes. सबसे आसान एग्जांपल है 15 साल के बच्चे का एटीट्यूड 5 साल का, 25 का, 45 का। 5 साल का बच्चा खिलौने के लिए जान देता है, 25 साल किसी और के लिए जान देता है, और खिलौने को भूल जाता है ना, 15 से शुरू हो जाता है, 25 30 तक चलता है। तो किसी इंडिविजुअल ने बताया कि लाइफ के स्टेजेस के हिसाब से सब चेंज हो जाता है। ये फिलोसफर साथ में से डिप्रेशन, किसी का डिप्रेशन किया, और एक शायर ने लाइन लिखी है, उसमें नोट कर लो, जिंदगी में नोट करना वैसे पूरी जिंदगी की हिस्ट्री 4 शब्दों में दी है। गौर से सुनना, बात करना, सुनना ठीक से, जहां पे बात है ध्यान रखना, खत्म होने के बाद करना है ना। मेरे बेटे का फेवरेट शेर है, मैं इसको कोट करता हूं, मुझे सुनाता है, अपनी स्टेज पर मेरी स्टेज चली है और मेरी पता है। तो शेर है, होती है मेरी बताना, मैं जैसे बड़ा फोकस वीडियो से चैनल चल रहा है आपका, इसको ऑब्जेक्टिफिकेशन, तो ये है अभी तक फोन करना, शेर है, होती है हसरतें हर उम्र में जुदा।
तो एक फैक्टर है एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है चेंज होती है, वैसे वैसे हमारे एटीट्यूड चेंज होने लगते हैं, है ना? अरे सॉरी, ये बात उसूल की बात है। और दूसरा है कि अगर आप कोई मेल है कोई फीमेल है, तो मेल फीमेल होने से भी एटीट्यूड चेंज हो सकते हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इस पर डिबेट है वैसे, कई लोग मानते हैं कि मेल बिहेवियर और फीमेल बिहेवियर बचपन से ही अलग होता है। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड ह्यूमन बायोग्रामर, और ह्यूमन बायोग्रामर का मतलब है द ग्रामर ऑफ द बायोलॉजी ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स इज डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाई देयर रिस्पॉन्सेस टू सेम सिचुएशंस आर क्वाइट डिफरेंट मेनी टाइम्स। सो इफ समवन इज अ मेल, maybe his attitude will be somewhat different for a specific situation than for a female। और ये बात बहुत लोग मानते हैं, तो आप भी कह सकते हैं कैसा हो सकता है। जैसे एक जनरल सा assumption हालांकि गलत है मेरे ख्याल से, आप लोग बताएंगे कि पिंक सच में पसंद है आप लोगों को, कई लोग बोलते हैं लड़कियों को पिंक पसंद आता है, इसे नाम देते पिंक, इसे नाम देते पिंकी, पिंकी वैसे बना, हाँ पिंकू भी रखते हैं, सही बात है, और ग्रीनी में नाम सुना कभी, ग्रीनी ब्लू ब्लैक है, चलो आप फेवरेट है, दो लड़के आपस में करेंगे इसका फेवरेट है, तो है तो फेवरेट होगा। तो एज, दूसरा है सेक्स या जेंडर, तीसरा हो सकता है कि फिजिकल कंडीशन क्या है। if someone is physically fit, his attitude will be different, if someone is physically not fit, his attitude will be different। फॉर एग्जांपल आप पूरे फिट हैं, कोई आपसे घूमने चले चलोगे, हाँ, और फिर किसी को बहुत दर्द होता है, उसे बोलते हैं नहीं यार लूडो खेल लेते हैं, वो भी फोन पे खेलते हैं, चलो लूडो, तो घुटने में दर्द क्या, so he will not be able to like the activities in which he has to suffer pain in his knees, but the one who is physically fit will be more comfortable and more ready to accept the attitudes of physical activity। तो फिजिकल कंडीशन हो सकता है किसी को डायबिटीज हो, मीठे के प्रति उसको लगेगा कि जहर है, किसी को बीपी है, आप कहेंगे नमक रस पियोगे, नहीं यार बीपी हो जाएगा, ना बीपी हो जाएगा। so attitudes towards different things can be decided about my physical conditions including the age, including the sex or gender। second is genetic factors, ये एक नई रिसेंट रिसर्च है, 1980s 90s से पहले सब लोग मानते थे कि देयर इज नो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, लोग हंसते थे इस बात पे जब कोई कहता था कि देयर कैन बी जेनेटिक फैक्टर्स फॉर दिस, बट इन 1990 देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड वॉलर, एंड इन 1992 देयर वाज अ साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड बूचर्ड। these two researchers proved that the formation of attitudes to some extent can be linked to the genetic characteristics। so this is a new research in psychology। इन्होंने कैसे प्रूव किया, देखो कैसे प्रूव करते हैं। सपोज कीजिए कि दो लोग हैं एक्स और वाई, साइकोलॉजी में रिसर्च का मतलब दे विल टेक टू आइडेंटिकल ट्विंस, टू नॉन आइडेंटिकल ट्विंस एंड टू सिंपल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर नॉट ट्विंस एट ऑल, और ऐसे भी दो दो ग्रुप लेंगे और छह ग्रुप हो गए, टू आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग इन द सेम एटमॉस्फेयर, two identical twins living in different atmospheres, two non-identical twins living together, two non-identical twins living in separate conditions, and same for the two non-twin brother sister siblings। अब इन सबकी जिंदगी भर की स्टडी करेंगे एंड देन दे विल कोरिलेट द डेटा कि क्या उससे कंक्लूजन निकल सकते हैं, और जब भी कंक्लूजन सामने आए तो पाया गया कि इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस आर द वंस हु हैव एक्जैक्टली सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। इसका मतलब है कि उनकी बायोलॉजी एकदम सेम है, जीन्स एकदम सेम है, तो डिफरेंस अगर इनको अलग अलग कल्चर में रख दें और इनके एटीट्यूड्स एकदम अलग हो जाएं, सो इट विल बी प्रूव्ड दैट जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी डजंट प्ले एनी रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स। लेकिन अगर दो आइडेंटिकल ट्विंस अलग अलग कंडीशंस में पले बढ़े, दे डोंट इवन हैव इंटरेक्शन विद ईच अदर, बट स्टिल a starting similarity is visible in their attitudes, it means the formation of attitudes has something major to come from the genes, and this second point was proved by Bouchard। पहली बार ये साबित हुआ identical twins have similarities, और ऐसी similarities हैं जिनको आप normally ये नहीं कह सकते कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है, strikingly similar attitudes they have, and this was proved even when they are reared in different conditions, rather opposite conditions। फिल्मों में होता है कि दो ड्रामा थे, एक पुलिस के घर चला गया, एक डाकू के घर चला गया, एक बन गया पुलिस, एक बन गया डाकू, कितने दोनों सॉल्यूशंस होते हैं फिल्मों में। रिसर्च ये साबित कर रही है कि even if the identical twins are sent to different places for the socialization purposes, still they may have or they generally have startlingly similar attitudes। लेकिन ये एटीट्यूड्स बहुत कॉम्प्लेक्स वाले नहीं होते, which एटीट्यूड्स, जेनेटिक लेवल पर जो एटीट्यूड दिखते हैं वो बहुत बेसिक एटीट्यूड्स हैं, जैसे टेस्ट को लेकर, फूड को लेकर हो सकता है, म्यूजिक को लेकर हो सकता है, इनको बोलते हैं गट लेवल प्रेफरेंसेस, और या एक बेसिक हैप्पीनेस या उसका रिवर्स कोई पक्का मनहूस अगर है तो जेनेटिकली हो सकता है। एकदम सिंपल एग्जांपल समझ लीजिए, पूरा कंसेप्ट समझ जाएगा। देखो जो कहते हैं कि सब समाज में सीखते हैं एटीट्यूड्स, उनके पास एक सवाल का जवाब नहीं है, और सवाल क्या है, मान लीजिए कि दो बच्चे पैदा हुए और दोनों की उम्र 2 दिन है ना, दोस्ती नहीं होंगे बीच में 2 दिन के, एक ही घर में मान लीजिए होंगे दो लेडीज को बाई चांस ऑलमोस्ट सेम देते हुए, और इन्होंने समाज से कुछ नहीं सीखा तो आप उनको कुछ ट्राई करो, जैसे बच्चा मुंह खोले थम्स अप की बूंद डालो, तो बच्चा समूह नतीजा कर दिया मेरे साथ 3-4 सेकंड में मुंह ठीक होता है, फिर मुंह खोले जी बाहर निकलता है, उसका बाकी बढ़िया है और लाओ वो कैसे बनेगा, तो कोई तरीका दूसरे मुंह डालो उसने जैसे किया, आप समझ दोनों अच्छा लग रहा है बढ़िया, फिर आपने मीठा पानी लेकर दोनों डाला मुंह खोल दिया, फिर नींबू लेकर लो, जैसे मुंह चोड़ पड़ा, फिर 10-12 सेकंड तक मुंह रहेंगे, उसके बाद मुंह खोले ये अगली बार मुंह खोले ड्रॉप से करेगा जाओ। इंटरेस्टिंगली सम डॉक्टर बताएंगे क्या होता है, इंटरेस्टिंगली सम ऑफ द चिल्ड्रन लाइक क्रेडिट जूस, और अभी सीखा नहीं किसी से, एंड मोस्ट ऑफ देम डू नॉट लाइक इट एट ऑल, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रेडिट जूस, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। तो ऐसा क्यों है कि एक बच्चे को एक चीज अच्छी लगी, एक को खराब लगी। द सेम गोज विद द म्यूजिक, एक गाना चला एक बच्चा शांत हो गया, वही गाना कहीं बच्चे क्रांति कर दी, लेकिन सेम गाना चलाया तो कोई डिफरेंस नहीं किया। सो वन ऑफ द पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस ये है कि जब बच्चा पेट में था तब इसकी मां ने क्या खाया और क्या सुना, दिस इज वन पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। और जनरली ऐसा होता है बच्चे पेट में तो मम्मी क्या करती है कुछ खास खाया तो वही सुनता बच्चे, तो कुछ टेस्ट डेवलप हो जाता है, पर अगर उन 9 महीने में वो चीज ना खाई हो तब कैसे डिसाइड करेंगे। कुछ गानों पे होता है कि गाना सुना मम्मी ने अंदर गाना शुरू हुई, मां समझी गाना सही लगता है इसको, इस बात से बच्चा जब बच्चा अंदर शांत हो माने गाना चला बासु धड़ पड़ने शुरू हुई, ना बोला थोड़ी हाथ में फिट बच्चा स्वस्थ है, तो वो गाना तो बच्चा पैदा हो उसको बदलता रहेगा क्योंकि उसको हैबिट है, पर जो गाना कभी माने 9 महीने में सुना ही नहीं उस पे कैसे अप्लाई होगा। तो कुछ ग्रे एरिया है कि बहुत बेसिक चॉइसेस फूड म्यूजिक ऐसा लगता है कि जेनेटिक फैक्टर्स काम करते हैं। और सबसे लास्ट रिसर्च कहती है 2 तरह के बच्चे छोटे होंगे आपने, अभी रिसेंटली हमारी फैमिली में 2 एक बच्चा छोटा 3 महीने का, वो इतना सही बच्चा है कोई उठा के ले जाए हंसते रहता ही, किसी ने उठाया कोई आगे ले जाए, कोई चले चले फिर बच्चे तुम्हें रोते नहीं मस्त रहते हैं, कुछ सुपर होते हैं उनको अपने हाथ में लगा दिया शुरू, अच्छा हाथ में लगा दूसरे देखा तो घर में शुरू, और गोदी में उठा लिया उसके बाद तो देखिए क्या होता है, छोटा सा बच्चा है। तो कुछ बच्चे हमेशा मनहूस क्यों रहते हैं, कुछ बच्चे हमेशा हैप्पी क्यों रहते हैं, एंड द साइकोलॉजी हैज नॉट बीन एबल टू फाइंड द रीजंस इन द एटमॉस्फेयर। सो इट इज बिलीव्ड बाय दिस रिसर्चर्स दैट सम ऑफ द रीजन इज इन द जेनेटिक्स, और जो लोग बहुत खुश होते हैं वो किसी चीज से खुश नहीं होते, दे आर हैप्पी फॉर एनीथिंग। और आखिरी बात इस सेंटेंस में ये है,
कई लोग आईएएस बनने के बाद भी दुखी होकर सुसाइड कर लेते हैं, और कई लोग बहुत छोटी नौकरी में रहकर मस्त हो जीते हैं। ये जो मस्त हो जीते हैं वो वाला बच्चा है, और वो मनहूस वाला सब कुछ मिलने के बाद भी दुखी है। चलिए मिलते जाइए।